recording on computer. So basically, vectors is what? Vectors is what? वेक्टर्स म्हणजे ज्यांना मॅग्निट्यूड डायरेक्शन दोनों रहता है मॅग्निट्यूड और डायरेक्शन त्याला वेक्टर्स म्हणतो आपण. ठीक आहे. हो. So it's a so it is always represented by this something what we call it as a line segment. If I have to draw like this, okay, AB, or I'll just clean this board. Something like this. We always denote it by this upper arrow. I don't know why they have denoted like this. ठीक है. And इसका magnitude रहता है. Then there are types of vectors: zero vector, unit vector. Okay, and there is coterminous vector. Then there are equal vectors. Then there is negative vector. So I don't know. This is all. These are all new terms for me also. Co-initial, coterminous. I have never heard of these terms. Okay. Zero vector तो पता ही है. ठीक है. Fine. Then there is unit vector जिसका magnitude 1 रहता है. Correct. Then it is always also having a direction also. Okay. Equal vectors means basically उनका direction और magnitude दोनों same है. ठीक है. Fine. So then there are collinear vectors, or then there are free vectors. Okay, I'm not sure what is this free vector. If free vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vector. Then there are localized vectors. Localized vector मतलब क्या है? For a vector of a given magnitude and direction, if its initial point is fixed in space, then such a vector is called localized vector. Okay. Yes. Then there is algebra of vectors. There is what do you mean by algebra of vectors? मतलब हम लोग जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वेक्टर के साथ में. ठीक है. अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, if you multiply scalar by a vector, it is called as scalar multiplication. Correct? We can multiply. Yes. Then we can obviously do addition of vectors. तुमको पैरेललोग्राम पता है, right? We have used it quite a lot. Physics में हम लोग यूज करते हैं. Correct? Yes. Fine. Yes. So triangle law भी है यहाँ पे. So it is quite similar to the parallelogram law. Correct? Yes. Then you have ये सारे बेसिकली उन्होंने लॉज बताए हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के. ओके. एसोसिएटिव. ओके. देन एडिटिव, इनवर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. फाइन. Yes. सो इफ अब थ्योरम भी बता रहे हैं वो लोग. ठीक है. इफ two non-zero vectors A and B are collinear, if and only if there exists a scalar m and n, at least one of them is non-zero, such that ma plus nb is equal to 0. ठीक है. So they are supposed to be collinear अगर ऐसा कुछ है. ठीक है. Then that is we are not going to prove that thing. Okay. So अगर A and B है, so ma plus nb has to be 0 for what? For vector to be collinear. ठीक है. Yes. Then theorem 2 is let A and B be collinear vectors and R is a coplanar with A and B. Then there exists मतलब unique scalars T1 and T2. ठीक है. Yes. Such that R1 is T1A plus T2B. कोई भी वेक्टर हो पूरे स्पेस में. ठीक है. इफ कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में है, राइट? ये ऐसे दो वेक्टर्स रहे हमारे पास में. ठीक है. और अगर ये ऐसा वेक्टर रहा, ठीक है, सो लेट अस से दिस इज वेक्टर R, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B. तो T R
can always be written as some t1 into a plus some t2 into b. Okay, so this is the rule they are saying. They are saying this is the theorem. Okay. Yes. We are not going to again prove it. So again, this can be extended to the the theorem number 3. Three vectors A, B, C are coplanar if and only if there exists a linear combination of xa plus yb plus zc is equal to 0. Okay. Now vector in 2D dimensions. What do you mean by 2D and मतलब 2D और 3D में क्या डिफरेंस है? कौन सा डायमेंशन ऐड हो रहा है सिर्फ 2D और 3D में? मतलब 2D में एक्स वाई रहता है ना एक्सिस, और इसमें 3D में जेड किया जाता है एक्स वाई। ओके, तो अब हमारे पास में जब 3D रहता है तब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस 2D मच, 2D तो है ही नहीं कुछ, मतलब ये ऑलरेडी वी नो 2D। ये चैप्टर तुमको 10th स्टैंडर्ड में वगैरह था क्या वेक्टर्स के ऊपर? नहीं, मतलब ओके सीधा वेक्टर्स 12th में आया। ओके, और 11th में? 11th में फिजिक्स में था बस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ओके और डॉट प्रोडक्ट वगैरह, बस उतना ही था, बाकी ओके, कुछ नहीं, मैथ्स में नहीं था। अच्छा ठीक। सो ये सब काफी बेसिक्स है, आई एम जस्ट ब्रशिंग ओवर इट, मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सब आपको पता ही है, ठीक है। So if you take a point P in the space, I'm just drawing it in 3D. Okay. If you take a point, कैसे बनाऊं? Let us say this is your X, this is your Y, and this is your Z. So XY is actually coming in the plane and Z is coming out of the plane. And if we have a point P here, okay, so इसका जो ये वाला डिस्टेंस रहेगा वो x रहेगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस y रहेगा, मतलब if we basically have its coordinates x y z, ठीक है, एंड जो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू z, करेक्ट, ये z रहेगा, यस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? नहीं। ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा बॉक्स बना के और ये सब करके कोशिश की है समझाने की, ठीक है, फाइन। यस, So the distance from the origin is obviously under root of x square plus y square plus z square. And if we have two points in space, then the distance is x1 minus x2 plus y, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square, where x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are the coordinates of that point, ठीक है? यस, यस। So similarly, अगर suppose हमको एक point का x axis से अगर suppose डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? So it will be simply y square plus z square. If you see this diagram is very important. Okay. अगर सपोज को इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको x एक्सिस से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके, तो कितना रहेगा वो डिस्टेंस? x माइनस x1 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा ना, प्लस y माइनस y1 और z माइनस z1 उनका होल स्क्वायर, वही रूट में। So let us see that once. I'm drawing a different kind of a coordinate system. पहले मैंने x5 इसमें बनाया था. Now what I'm
Would have extended these lines here. This is the point P. Okay. So if this is X, this is Y, this is Z. Okay. Then my this distance is what? ये मेरा X है. Correct? है कि नहीं? Yes. ये मेरा X है. हाँ. Okay. और मेरा Y कौन सा है? ये मेरा Y है. Correct? ये मेरा Y है. यहाँ से. ठीक है. और मेरा Z कौन सा है? This is my Z. So if I have to see the distance of this point P from only the x-axis, ठीक है? x-axis से इसका distance कितना रहेगा? मतलब I'm basically calculating this distance, है कि नहीं? यहाँ से लेके x-axis का distance कितना रहेगा? और I'm just calculating यहाँ से लेके दिस इज द ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया राइट, लेकिन हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए. तो ये अगर मैं ऐसा डायगोनल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सो दिस इज अगेन अ रेक्टेंगल. ओके, आई नो दिस इज y, दिस इज z, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. डू यू वांट मी ड्रॉ क्लियर डायग्राम? क्लियर है इसमें? ओके. नहीं मतलब एक बार फिर से थोड़ा सा. हाँ. बॉक्स बनाने के लिए मैं एक दूसरे डायमेंशंस मतलब दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ. समझ में आई बॉक्स क्या है? तो okay, now if I have this point P, correct, ये मेरा point P है. Okay, now this is my x-axis, this is my y, this is my z-axis, correct? Yes. ये मेरा डिस्टेंस x है, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस y है, करेक्ट, और ये मेरा डिस्टेंस z है, करेक्ट. Now if I have to find the distance of this point P from x-axis, तो कौन सा डिस्टेंस रहेगा? ये तो z है, बट मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से चाहिए, राइट, इस पॉइंट से, करेक्ट. सो आई एम ड्राइंग योर डायगोनल हियर. अभी डायगोनल इस रेक्टेंगल का है ना, इस रेक्टेंगल का है, ये y है, z है, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस तरफ से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि नहीं? और ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा फिर? अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? कोई डाउट है? मैं इस तरफ से मतलब मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं मैं इसको, तो फिर मुझे ये रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा ना, ये y दिखेगा, मुझे पॉइंट P ऐसा दिखेगा और z ऐसा दिखेगा, ठीक है. सो मुझे डिस्टेंस, और यहाँ पे जो है ये इनटू द प्लेन, इनटू दिस प्लेन जो है मेरा x एक्सिस है, राइट. तो मुझे पॉइंट P का डिस्टेंस अगर x एक्सिस चाहिए, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है. So theorem number 4 क्या बोलता है? ABC are three non-coplanar vectors, then any vector R in the space can be uniquely expressed as a linear combination of A, B, C. ठीक है. और ये मेरे पास अगर वेक्टर ये x, y और z है, ठीक है, and these are all what
नॉन कोप्लेनर, राइट? तीनों एक प्लेन में नहीं है ना, हाँ ठीक है। एक्स वाई तो एक प्लेन में है, बट जेड इज आउट ऑफ द प्लेन, राइट? उस प्लेन में नहीं है ना यस जेड। तो वो बोल रहा है कि आर जो है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, T1 T2 एंड T3, ऐसे टाइप का यस लीनियर हाँ कॉम्बिनेशन विल बी द वेक्टर आर, एनी वेक्टर आर, हम्म ठीक है। हाँ मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम्म चेंज मतलब करना मतलब क्या है, मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, मैंने ओरिजिन चेंज कर हम्म दिया, ठीक है। हाँ आई कैन डू दैट एनी टाइम, ठीक है। यस फाइन, सो वी हैव लर्न द 4 बेसिक थ्योरम्स, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सब बेसिक्स है। Then there is a unit vector. Okay, unit vector is the vector divided by the magnitude. Okay, यस so collinear points in 3 dimensions if and only exist non-zero scalars x, y, z such that xa plus yb plus zc is equal to 0. ठीक है, कोप्लेनरिटी मतलब क्या है? ओके, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स बोला है, ठीक है, एंड देयर इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स एंड देयर इज कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। Then यस there are linearly dependent vectors. Okay, a set of non-zero vectors A, B, C is said to be linearly dependent if there is exist scalar wise x, y, z not all zero, such that xa plus yb plus zc is equal to 0. ये थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा सा अलग है हमारे 2 डायमेंशन से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, सो इफ आई हैव a vector which is joining 2 points, okay, then AB, if it is a vector, okay, then AB will be given by B minus A, ठीक है। यस मतलब if I have a vector here, ठीक है, there are 2 vectors A and B, ठीक है, so then this AB will be what, this AB vector बी will be माइनस B minus A, ए ठीक है। यस इट्स, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा फिर, h2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, ठीक है। यस These properties are very important. Collinearity of 3 points. Okay, there exists 3 distinct points A, B, C with position vectors A, B, C respectively are collinear if and only if there exist 3 non-zero scalars x, y, z such that xa plus yb plus zc is equal to 0. ठीक है, यस तो then there is coplanarity of 4 points. अब 4 पॉइंट्स बोला, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब 4 मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 नॉन जीरो स्केलर्स रहेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सच दैट एक्स एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस Then there are linearly dependent vectors. A, B, C is said to be linearly dependent if there exist scalars x, y, z not all 0 such that xa plus yb plus zc is equal to 0. Linearly dependent and collinearity, इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है तुमको? यहाँ पे मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है ना, और यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0 है। Okay, क्या दिस इज द collinearity, और यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ linear dependent, ठीक है। एंड linearly independent वेक्टर्स में क्या है, ठीक है, कोलिनियर का तो सीधा 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 यही मतलब है ना कि मेरे पास में एक ये एक ऐसा वेक्टर है, दूसरा है, और ये ऐसा तीसरा है, ठीक है, मतलब दे आर ऑल इन द सेम लाइन,
सेम लाइन में है, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ जो इनके कोएफिशिएंट्स है वो तो एक्स वाई प्लस जेड जो है, अगर मैंने ऐसा किया, ठीक है, मतलब एक्स, अगर एक्स ए प्लस वाई बी, मतलब एक्स और वाई और जेड स्केलर्स है, दे आर नॉट द डायमेंशंस हियर, ठीक है। जेड सी अगर ऐसा किया तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मेरा पक्का 0 होना ही चाहिए फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है। यस, Let's take a break of 5 minutes. I'll be back. Okay, I'm stopping the recording now. So I'm just having a look at the example number 2. Okay, 3 points A, B, and C are collinear. Then find the ratio in which the point C divides the line segment AB. Okay. So they are saying that C is dividing the line segment AB in some ratio. Correct? yes. Fine. So I have to see the section formula. Okay, so if it is internally dividing, then we have R is equal to MB plus NA by M plus N. Okay. Yes. If it is dividing externally, then it is MB minus NA upon M minus N. Yes. So I hope you are aware of this formula. Yes. So now they have not shown that the ratio in which it is dividing, they have not asked us, they have asked us to calculate that thing and the values of the point P and Q. Okay. So let us say it is dividing in the ratio k is to 1. मतलब अब वो k is to 1 क्यों ले रहा है, वो m by n is equal to k ले रहा है वो, ठीक है, m by n is equal to k ले रहा है, मतलब they are just dividing the numerator and denominator by m plus nb on m plus n है ऐसा, तो r equal to m by n a plus b, ठीक है, upon m by n plus 1, correct? So here they have taken m by n is equal to what? K. Okay. तो ऐसा करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ऐसा एग्जांपल आ सकता है आपको, ठीक है, सीईटी लेवल में. I'll just take it. I'm just looking कि इन्होंने कितने सॉल्व एग्जांपल्स है, इन्होंने काफी सॉल्व एग्जांपल्स है, ठीक है. That's why this makes it a very big chapter actually. So I have ignored exercise 5.1 completely. I have ignored exercise 5.1 completely because it's a very elementary exercise based on your basic concepts only. Okay, you can have a look at it. Okay. And जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि एक पॉइंट का डिस्टेंस हमने यहाँ से निकाला था, एक्स एक्सिस से निकाला था, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट of the following planes. Okay. तो अभी before going to that example, we'll just solve this section wala example number 2. Okay. So can you dictate me this problem? 3 2p q8 minus 10. Okay. Yes. p 2p and q8 and minus 10. So these are points which are being divided by internally by point C. Okay, so C is minus 2 minus 3. C is minus 2 minus 2 minus 3 1. Now I have to take the ratio k is to 1. So let us say minus 2i minus 3j plus k is equal to some k into what is this, 3i plus 2j plus pk, okay, plus qi plus 8j plus minus 10k upon k plus 1. So what we do here is we individually compare the coordinates, correct? We individually compare the coordinates. So let us say
minus 2 is equal to 3k plus qi upon k plus 1. ठीक है, minus 3 Yes. is equal to 2k plus 8 upon k plus 1, and 1 Yes. is equal to pk minus 10 upon k plus 1. सो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमको k की मिल जाएगी, एंड देन वी विल बी एबल टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, p एंड q की वैल्यूज हमारी आ जाएगी. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम हियर फर्दर, इट इज सिंपल अलजेब्रा ओनली, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम, सो दिस इज द वे टू सॉल्व इट. ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है. देन दे आर आस्किंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, मतलब पहले तो हमको k निकालना है, तो k तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, and then we'll have to find the values of q and this p. ठीक है? Yes. Now if I come back here to this thing, 4 to 6, 4 comma minus 2 comma 6 का distance from the xy plane. So a 4 comma minus 2 comma 6, how do I plot this point? Let us say this is x, this is y, and this is z, right? Z axis. The point here 4 comma minus 2 comma 6, correct? So its x is positive, ठीक है? Y is negative. Yes. ठीक है? Y is negative, that is also positive, right? तो ये point जो है यहाँ पे कहीं तो भी लाई करेगा, ठीक है? Does correct है कि नहीं? हाँ. It is below this xz plane. xz plane के negative. So this is my 2. I'm just taking the magnitude, but actually it is minus 2, right? ये minus 2 है ना? Yes. और the magnitude is 2. अब उन्होंने पूछा है Yes. इस जो है ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है? Which is 4 comma minus 2 comma 6, correct है कि नहीं? Yes. अभी हमें z पता है, z is 6, correct, and my x is 4, correct है कि नहीं? Yes. Just making a clear dotted line for the q so that there is no confusion here. ठीक है, अब कोई confusion नहीं है ना? It is below the xz plane, right? So its distance from the xy plane. Its distance from the xy plane. Distance from the xy plane is nothing but z. यही है ना distance? यही distance है, right? xy plane से distance. Yes. So it is 6. ठीक है? Okay? Yes. Distance from the yz plane. Distance from the yz plane. Distance from the yz plane कितना है? Y और z plane से distance कितना है? 4. और 4. मेरा mod of y. Sorry, this is my mod of z. Distance from the xy plane is mod of z. This is my mod of x. Okay, and then distance from the xz plane. Distance from the xz plane is how much? xz plane से distance कितना? y. xz plane ये है ना, मेरा ऊपर है. पहला जो distance है ये कितना रहेगा? This will be your y. So this is minus 2 equal to mod y. ठीक है? समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है? तो अगर सपोज हमको x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मतलब पहले a b c तो निकल गया, x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड z एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है? Yes. समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Now they have given some standard formula for the centered and all. Okay,
सेंट्रॉइड के लिए उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि in triangle ABC, centroid G divides the medians internally in the ratio 2:1 and is given by this thing. And G is actually A plus B plus C by 3. We have to verify this thing. ये मतलब हम verify नहीं करेंगे, ठीक है? Similarly, उन्होंने tetrahedron का भी दिया है A plus B plus C plus D by 4. Okay? हाँ हाँ एंड वो बोल रहा है कि 3:1 में डिवाइड करता है. किसको डिवाइड करता है वो 3:1 में? वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द अपोजिट ट्रायंगल. अगर वो लाइन सेगमेंट मैंने ज्वाइन किया टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? 4 ट्रायंगल्स मिला के एक ऐसा मैंने एक शेप बनाया, पिरामिड शेप बनाया मैंने 4 ट्रायंगल्स मिला के. ऑल 4 ट्रायंगल्स आर व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ठीक है? समझ? एबीसी की तरह मेरे पास और 3 ट्रायंगल्स है, वो फेसेस मैंने ज्वाइन करके एक टेट्राहेड्रॉन बनाया. ठीक है? मैंने जो बेस वाला जो ट्रायंगल है उसके सेंट्रोइड को मैंने वर्टेक्स से ज्वाइन किया. सो इस तो जी जो मतलब A plus B plus C plus D by 4 जो निकला है वो उस सेगमेंट को मतलब AE को 3:1 में डिवाइड करता है, ऐसा वो बोल रहा है. ठीक है? यस. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स डायरेक्टली. ओके? अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स. हम प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे. ठीक है? हाँ. हम प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे. I just want to have a look at ये चैप्टर काफी बड़ा है. It might take another 1 hour or so because इसमें I guess in total there are around 4 or 5 exercises. ठीक है? Let me check that once. काफी ज्यादा एग्जांपल्स है और काफी ज्यादा बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ना. मतलब इसका सारा एप्लीकेशन तो हमारा अलजेब्रा 1 में आता है और इंजीनियरिंग में. दैट इज व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थ्योरम्स. ठीक है? और उसके बेसिस पे हमारा फिर सी एज आई सेड देयर आर 5 एक्सरसाइजेस. ठीक है? यस. एंड इसके ऊपर काफी सारे मतलब आगे भी जाके काफी सारे थ्योरम्स हैं जो हायर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं. ठीक है? सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके? एंड दैट इज इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है. ठीक है? So if I have a look at the exercise 5.2, any chapter, exercise 5.2 का any question? यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो प्रूव वाले हैं. ठीक है? 9th number. हेलो? 9th number. 9th number. Okay. If two vertices of a triangle are A 3, 1, 4, B -4 and the center of the G, find coordinate of the third vertex. Okay. तो ये तो सिंपल ही है ना. मैं XYZ लेता हूँ. ठीक है? I'll take A plus B plus some let us say X. So 3 minus 4 plus X by 3 will be equal to -1. So this becomes very simple, right? मतलब ABC दिया ABG दिया उन्होंने. ठीक है? A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, G दिया हुआ है, and I don't know what is C. A plus B plus C whole divided by 3 is equal to G, right? Correct? Yes. और A क्या दिया है? 3, 1, 4 -4 5 -3. 3, 1, 4 and this is -4 5 -3 -4 5 -3. ठीक है? And then you have G is -2 2 -1 2 1 2 1. So I have to just क्या करना है यहाँ पे 3
plus minus 4 plus x, like I'm taking this as x by z. Okay, so divided by 3 is equal to what? -1. ऐसे ही आएगा नहीं, तो मुझे x का वैल्यू मिल, ठीक है। फिर 1 plus 5 plus y divided by 3 is equal to 2, ये मिल जाएगा, तो मुझे y मिल जाएगा यहाँ से, करेक्ट। सो z मिल जाएगा, so 4 minus 3 plus z by 3, okay, is equal to 1, ठीक है। सो इससे तुमको z मिल जाएगा, फाइन। यस। So I guess I'm not going to go much into this detail. है तो काफी important exercise from the board point of view also, ठीक है, but from CET level I don't see कि यहाँ पे कुछ ज्यादा questions है, ठीक है। Now we come to the main part here, product of vectors. So या तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। And there is obviously some angle also between these two vectors. तो अगर सपोज हमको स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय AB cos theta, okay, and theta is the angle between A and B. So A dot B is mod A into mod B into cos theta, ठीक है। Yes. So finding angle between two vectors. So you just have to find A dot B divided by mod A mod B will get theta, or cos inverse of that will be theta, ठीक है। Yes. If you look at the laws, okay, अगर दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है तो A dot B will be A into B mod of A into mod of B, मतलब cos 0 रहेगा, ठीक है। अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल बी माइनस ऑफ mod A into mod B, ठीक है। Yes. देन यहाँ पे A dot B जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। Yes. A dot B is less than equal to mod A into mod B, मतलब mod of A dot B is less than equal to mod A into mod B, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शन वाला भी कर रहे हैं ये लोग, ओके, नॉट श्योर कि ये इतना डिटेल में जाना चाहिए यहाँ पे, ओके, बिकॉज लेट अस से यू हैव योर डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या होता है कि मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया है यहाँ पे, लेट अस से मैं कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ओरिजिन से जो भी वेक्टर आएगा यहाँ पे उसके जो हर साइड पे जो प्रोजेक्शन, हर एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन रहेगा उसको वो लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है। उसको वो लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन हियर, ओके। इफ यू कैन सी द फिगर हियर, सो A is making an angle some alpha with the what in the x-axis, X-axis, yes. and this is making some angle beta with the y-axis and some angle gamma with the z-axis, ठीक है। Yes. So this is how they have given the direction cosines, and obviously cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1, which is valid, ठीक है। Now यहाँ पे now when they are saying that it is always equal to 1, so अगर suppose मेरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है, my vector is
My vector is ai plus bj plus ck, correct? Yes. Just this like this. Then my L or M or N, these are the direction cosines. Okay. And I know that L square plus M square plus N square is equal to 1. Correct? 1. So L is given by A by under root of A square plus B square plus C square. Okay. Is equal to B by under root of A square plus B square plus C square. Okay. And N Yes. is equal to C by under root of A square plus B square plus C square. Yes. And उन्होंने प्लस माइनस इसलिए दिया हुआ है because we don't know what is exactly the value of A here. ठीक है? So these are quite simple problems. Okay, I'm not going to much detail here. I'm just saying कि theory कहाँ पे आ रही है ज़्यादा. ठीक है? So how do you find out whether the two vectors are orthogonal or parallel or neither? Simply by Orthogonal means उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा. करेक्ट? हाँ. और पैरेलल अगर है वो चेक करना है तो we just take the dot product and see whether it is equal to mod A into mod B. हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. ओके. डॉट B निकाला. It is equal to mod A into mod B. मतलब वो एक तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए. उनका डॉट प्रोडक्ट जो है it should be positive. ठीक है? And it should be equal to mod A into mod B. Then we can say it is collinear. ठीक है? ऐसे टाइप के है वो दोनों वेक्टर्स. ठीक है? और अगर सपोज अपोजिट डायरेक्शन में है सो दिस विल बी इक्वल टू A dot B will be equal to minus of mod A into mod B. ठीक है? Yes. So A dot B will be equal to minus of mod A into mod B if they are in opposite direction or theta is equal to pi. And this is equal to A into B if theta is equal to 0. ठीक है? Yes. समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Find the angle P of the triangle whose vertices are P 0, -1, -2, Q and R. Okay. So अभी कहाँ पे है एंगल मेरे को P पता नहीं मुझे. ठीक है? So it becomes difficult to solve these problems, right? मेरे को P पता नहीं मुझे कहाँ पे दिया उन्होंने. Okay. Do you want me to take any of the problems? Let me know. The line has the 12 problem. The line has direction ratios as 4, -12, 18. Find its direction cosines. अब डायरेक्शन कोसाइंस मतलब उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए. तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने क्या दिया हुआ है A, B and C दिया हुआ है. ठीक है? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? Let us go back and see डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ. क्योंकि कैसा होता है कि इट इज टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है. ठीक है? अब रेशियोज जो L and M are direction cosines. Okay? And डायरेक्शन रेशियोज जो है which are equal to L is equal to lambda A, M is equal to lambda B, N is equal to lambda C. ठीक है? So ATC are the direction ratios, L, M, N are the direction cosines. So direction ratios उन्होंने डायरेक्टली दे रखे हैं हमको. यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने? 4, -8, 12 ऐसे ही दे रखा है ना उन्होंने. करेक्ट? 4, -12 and 18. सॉरी 4, -12 and 18 ऐसा दे रखा है उन्होंने. ठीक है? तो इस केस में हमको क्या करना है? A by under root of A square plus B square plus C square. L is equal to M is equal to B. You have to take this sign into the consideration. Okay? B upon under root of A square plus B square plus C square and N is equal to C upon under root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब you can obviously do the this thing. Now let us say I take the 14th wala problem. Okay, can you see the 14th wala problem? Yes. Find the angle between lines whose direction cosines L, M, N satisfy the equations 5L plus M plus 3N is equal to 0, 5Mn minus 2NL plus 6LM is equal to 0. Okay. So how do we find out angle between lines? How will you find out? But यहाँ पे लाइंस कहाँ है मेरे पास में, कुछ दूसरा दो लाइंस तो दिए नहीं है मेरे पास में. Okay, we'll take this problem. Equations the We'll take this problem as noted. Okay. The direction cosines of AB are मतलब -2, 2 and 1. If A is equal to 4, 1, 5 and L of AB is equal to 6 units, find B. ऐसा दिया हुआ, ठीक है. The direction cosines of AB दिया हुआ. Okay. Direction cosines of AB दिया हुआ, ठीक है. Now let us say you have a point A. Okay, here is the point A. ठीक है. Here is the point B. ठीक है. Fine. Or yes. AB are minus the direction ratios are -2, 2 and 1. ठीक है. तो AB जो है -2 and 1 ऐसा दिया हुआ है. Now let us say this is vector A, this is vector B. हमें B find out करना है, correct? हमें B find out करना है. Yes or no? Okay. Yes. और हमें A दिया हुआ है, ठीक है. What is A given to us? 4, 1, 5. 4, so A is given as 4, 1, 5. Correct? 5 okay. And length of AB is equal to 6 units. Okay. So I know that AB is equal to B minus A. Correct? Okay. Now let us say B is equal to what? B is equal to some x, y, z. Yes. Okay. Yes. And yes. I know that B minus A जो है, the direction ratios of AB are -2, 2, 1. So अब मेरे पास मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे B minus A मेरे पास में दिया हुआ है, ठीक है. So -2, 2, 1 is equal to, I don't know what is this x, y, z, right? Okay. So this is equal to B. B क्या है मेरे पास में? It is x -4, ठीक है. What is, then we have y -1 and we have z -5, ठीक है. ऐसा है मेरे पास में. Yes. ये सब नो. Yes. और उन्होंने बोला है कि फाइंड B. अब उन्होंने AB क्यों दिया है मुझे समझ में. लेंथ ऑफ AB दे हैव गिवन अस 6 यूनिट्स. ओके, लेट मी फाइंड आउट वेदर इससे 6 यूनिट्स निकलता है लेंथ या कुछ और निकलता है. ओके, सो आई हैव -2 इज इक्वल टू x -4, ठीक है. देन सो x I will get it as 2, correct? Yes. Then I have y -1 is equal to 2. I will get it as 3, ठीक है. And z -5
is equal to 1. So I'll get Z is equal to 6. Fine. Yes. Now they have given that the length of AB is 6 units. Length of AB is 6 units. So I know what is अब मेरे पास में x मुझे आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है और 6 आ गया है. So it is 2, 3, 6. ऐसे बस पॉइंट B आ गया है. ठीक है. Now I'll just check whether इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से whether it is equal to 6 units or not. ठीक है. So let me check that thing once. 2 minus 4 whole square मतलब 4 plus 3 minus 1 whole square मतलब बेसिकली AB जो है इसका लेंथ 6 आता है क्या? नहीं आता है, राइट? इसका लेंथ AB का 6 नहीं आता है. उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ AB they have given A and they have given direction ratios of this thing. ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कैसे दिया है इन्होंने? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आर -2, 2,1. A is equal to this. Length of AB is equal to 6 units. Find B. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये. If they have given already ये वाला, तो लेंथ AB देने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो ऑलरेडी है ही ना. मुझे लेंथ AB देने की क्या? मेरा B पॉइंट ऐसे निकल गया ना, है कि नहीं? तो why do they need to give the length AB? Anyways. Fine. We'll just note this problem down. Okay. We'll see. Okay. So what is the vector product of two vectors? It is A cross B. Correct? Okay. Yes. Which is AB sin theta. Correct? Is equal to AB sin theta. Okay. So the two vectors are collinear. Okay. मतलब if that the sin theta 0 हो जाएगा because theta will be equal to 0, right? है कि नहीं? Yes. So A and B are any two coplanar vectors. Then any vector C in the space can be given by C is equal to XA plus 5B plus Z A cross B. This is because A cross B is perpendicular to A and B. Thus, A, B and A cross B span the whole space. Span the whole space मतलब क्या? कि मैं A, B और A cross B को यूज करके मैं I can plot any vector. मतलब मैं तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को लेके, we have read in the theorem, right? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को लेके मैं पूरे कोई भी वेक्टर, ठीक है? So there are some laws here. A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. B plus C cross A is equal to B cross A plus C cross A. ठीक है? So yes. M into A cross B है, so it will be MA into B. ठीक है? And then if MA into NB, we have MN into A cross B. ठीक है? So yes. I said I cross I will be 0, J cross J will be 0, K cross K will be 0, and you have to form a circle in anti-clockwise direction. मतलब I cross J will be equal to K, J cross K will be equal to I, and K cross I will be equal to J. ठीक है? Yes. Yes. Yeah. So since this is a vector, ठीक है? So A cross B will be equal to minus of B cross A. ठीक है? Yes.
And how do we calculate? If let us say this is A, this is B, okay? We have to go in the anti-clockwise direction. The thumb we have to rotate, or the wrist we have to rotate in the anti-clockwise direction, and the thumb will be pointing towards the A cross B direction. तो अगर सपोज मेरा A और B इस प्लेन में है, इस स्क्रीन के प्लेन में है, तो मेरा जो A क्रॉस B रहेगा वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, मतलब इट विल बी कमिंग आउट, मतलब क्या रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यस, okay. So they have given some solved examples here, okay, and you can obviously find out, मतलब तीन A क्रॉस B क्रॉस C भी फाइंड आउट कर सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C भी फाइंड आउट कर सकते हो, वेयर इंडिविजुअली अलग अलग ब्रैकेट्स में है। तो पहले तो A क्रॉस B फाइंड आउट, फिर C करोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। यस, सो भी हम लोग ये कंक्लूड करते हैं, A क्रॉस B अगर पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने C से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस और B क्रॉस C, ठीक है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझा। There are many examples, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। And if you have to calculate theta, then we obviously take the A cross B and we see the C. Now how do we do the cross, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटरमिनेंट से ना, करेक्ट, आई जे के लिखते हैं, ठीक है, आई जे के लिखते हैं ऐसे, आई, ओके, आई जे के लिखते हैं, ठीक है। देन वी राइट x1 y1 z1 हियर एंड x2 y2 z2 हियर, करेक्ट। यस, A vector is equal to x1 I plus y1 j, ठीक है, प्लस z1 k, ठीक है। B vector is equal to x2 I plus y2 j plus z2 k, and this is equal to, this determinant is what, A cross B, करेक्ट। और अगर B क्रॉस C होता है तो क्या होता है, ये x2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब x2 और z2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और x1 y1 z1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यस, Okay, so let's take a break here. Okay, we'll continue in the evening. We'll continue in the evening, and there we will try to finish this chapter and the other lines and angles वाला chapter also. ठीक है? ओके, ओके, Yeah. So in vectors, there is a slight confusion between the vector and the direction ratios. Okay, so if we have a vector as let us say some what can I say, a1i plus a2j plus a3k, okay, and there have been some ratios given, direction ratios, let us say a, b and c, okay. So A, B and C need not be equal to A1, A2 and A3. मतलब A need not be equal to A1, B need not be equal to A2, and C need not be equal to A3. These are ratios in the sense, if you have direction cosines as L, M, and N, okay? So your A1 will be equal to some L times lambda, okay? Sorry, your A will be equal to some L times lambda. Your B will be equal to some m times lambda, and your C will be equal to some n times lambda. Okay, so this is the definition of direction ratios, and this definitely may not be equal to A1. Okay, so when we have given some direction ratios, okay,
सो उसका ये मतलब नहीं है कि a और a1 इक्वल है. सो दैट इज द मिस्टेक दैट वी वर डूइंग इन प्रॉब्लम नंबर 13. ओके, दैट इज द मिस्टेक दैट वी वर डूइंग हियर. सो हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 13 हियर? We have AB as the segment. Okay, let us say Yes. this is A vector, this is point A, correct? This is B vector, this is point B, correct? This is point B, and this is B vector, correct? And they have given the direction cosines of AB, right? They have given the directions cosines of AB, correct? Yes. Now, when they have given direction cosines, okay, they have given the length, correct? Length is given as 6 units. Now let us say this A they have given how much? 415, correct? They have given 415, correct? Yes. And we are assuming that this is equal to x comma y comma z, correct? Yes. Okay. So what is the total length of this vector AB? AB is given as 6, right? Correct? Yes. 6 दिया हुआ है. Yes. Okay. So इसका ये मतलब है कि x minus 4 by 6, this is actually the vector, right? AB जो वेक्टर है वो मेरा क्या रहेगा? x minus 4, ठीक है, y minus 1 and z minus 5, करेक्ट? ऐसे रहेगा ना मेरा वेक्टर. Yes. है कि नहीं? है कि नहीं? That is b minus a, right? b minus a रहेगा ना. AB is equal to b minus a, करेक्ट? है कि नहीं? Let me dot arrows again, ठीक है? Fine. So AB is equal to b minus a, fine, and that will be equal to this, correct? Fine. Yes. Now, if we divide this vector by its magnitude, अगर मैं AB को पूरे इसको मॉडुलस ऑफ AB से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन क्वेश्चंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? x minus 4 by 6 I plus y minus 1 by 6 j plus z minus 5 by 6 k. Won't that be equal to the direction cosines? मतलब this is one direction cosine, this is one direction cosine, and this is one direction cosine. क्यों? Because x minus 4 whole square plus y minus 1 whole square plus z minus 5 whole square का under root is equal to 6, right? है कि नहीं? Yes. है कि? और अगर सपोज मैं if this is equal to L, let us say this is M and this is N, so automatically L square plus M square plus N square is equal to 1, है कि नहीं? Yes. हाँ. है कि नहीं? तो ये मेरा डायरेक्शन कोसाइंस मुझे मिल गया, राइट? ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया. Now they have given the direction ratios also, correct? डायरेक्शन रेशियोज भी दिए है कि नहीं? हाँ. डायरेक्शन रेशियोज उन्होंने क्या दिए हैं? उन्होंने दिए हैं -2 to 1, ओके? उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज -2 to 1 ऐसा दिया है उन्होंने, करेक्ट? हाँ. तो मेरे डायरेक्शन अगर मुझे कोसाइंस फाइंड करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर, it will be what? -2 by 3 by 3 and 1 by 3, है कि नहीं? ऐसे रहेगा. This whole direction ratio vector divided by its whole magnitude, right? Which is equal to under root of 2 square plus 2 square plus 1, which is equal to 3 ना, है कि नहीं? Yes. हाँ. तो इसके बाद अब ये मुझे डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए. अब ये किसके डायरेक्शन कोसाइंस है? ये डायरेक्शन कोसाइंस उसी AB वेक्टर के ही है ना, AB वेक्टर के ही है कि नहीं? हाँ. AB वेक्टर के ही डायरेक्शन कोसाइंस है ना, उन्होंने दिया है ना, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं AB का, तो वो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस भी उसी के है. और मुझे यहाँ से भी पता है, ठीक है, मुझे यहाँ से भी पता है कि इफ आई सी हियर, मुझे ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या करना है, सिर्फ अभी उससे इक्वेट करना है, सो दैट आई एम एबल टू गेट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है? सो x minus 4 by 6 is equal to -2 by 3, ठीक है? ये एक इक्वेशन आ गया पास में. y minus 1 by 6 is equal to 2 by 3, correct? And z minus 5 by 6 is equal to 1 by 3. So I'll get the x, y, z or the coordinates of B. उन्होंने पूछा क्या है मुझे? Find B
I have to find B using this method only. Okay. Yes. ठीक है. So this is why this chapter becomes lengthy, because इसमें काफी सारे नए concepts आ रहे हैं. Okay, which you have learned till now. Once you are thorough with the concepts, actually, then it becomes easier. काफी easy हो जाता है. जैसे even I got confused, right? What is the direction ratio? Direction cosine तो समझ गया था. ठीक है. Direction ratio समझना जो है is a bit difficult, क्योंकि एक नया टर्म आ गया है ना मेरे लिए, है कि नहीं? And for you also. So I'll go to 14th wala. Find the angle between lines whose direction cosines L, M, N satisfy the equations 5L plus M plus 3L. Okay. Now angle between lines. It doesn't make any sense. कोई sense नहीं बना रहा है question. What they are asking is basically they are asking the L, M, and N values. ठीक है. अब they have given us what they are satisfying. They are satisfying 5L plus M plus 3N is equal to 0. ऐसा कर लेना. हाँ. So 5L plus 3M plus N is equal to 0. This is what they are satisfying. है कि नहीं? Yes. हाँ. 5L plus M plus 3N. Is it what I have written? M plus 3N. Okay. And the second thing that the second equation that they're satisfying is 5Mn minus 2NL plus 6LM. 5Mn plus minus 2NL minus 2NL and then plus 6LM. Plus 6LM is equal to 0. Now, if they are direction cosines, they will satisfy L square plus M square plus N square is equal to 1. Again, you solve all these three equations, and whatever values of L and M you get, these are the lines. So then angle. हाँ, अब ये एंगल बोले तो क्या है? एंगल बिटवीन लाइंस मतलब क्या है? What they are trying to say is कि मुझे L और L, M, N के लिए हर एक के लिए दो दो वैल्यूज मिलेंगे मुझे. ठीक है. मुझे दो दो वैल्यूज मिलेंगे. ठीक है. तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? Whatever values I get, let us say मुझे L के लिए L1, L2 मिला. ठीक है. M के लिए M1, M2 मिला. ठीक है. N के लिए N1 and N2 मिला. ठीक है. दो दो वैल्यूज मिले मुझे हर एक के लिए. So whatever values I get, what I will do is I have to find the theta angle between them, right? So I will do theta कैसे find out करूंगा? L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 by बस यही एंगल रहेगा मेरा. क्यों? Let us say there is one direction vector which is equal to L1I plus M1J plus N1K. ऐसा रहेगा ना. एक डायरेक्शन वेक्टर लेट अस से A ऐसा आया और B मेरे पास में L2I plus M2J plus N2K. अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B. मतलब cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा रहता है ना मेरा, है कि नहीं? सो मैं cos थीटा इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे A और B के मॉड तो एक ही है ना, बिकॉज L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओनली, राइट? है कि नहीं? तो मॉड एंड मॉड बोथ आर 1. तो हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है A और B का, तो हम लोग क्या करेंगे? दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, राइट? है कि नहीं? यस. ये डॉट प्रोडक्ट है ना मेरा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके. ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब so I guess we have also seen the this cross product. Okay. Then we saw these rules also, A cross B plus C. ठीक है. Then हमने साइकिल वाला भी देखा था, I cross J cross K वाला. ठीक है कि नहीं? So geometrical meaning of vector A and B. If A and B are represented by directed line segments with the same initial point, they determine a parallelogram. This is what they mean. Okay. And the area of the parallelogram is A cross B. Okay. The area of the parallelogram is A cross B. This is the significant meaning or the geometrical meaning of A cross B. Okay. Yes. I guess you're thorough with this concept.
matrices concept. Okay, Yes. fine. So I'm not going to go much deeper into that thing. Okay, I'm just going to take some problems from this 5.4. Maybe one problem should be sufficient, one or two problems. Okay. So if we have U cross V, okay, I'm taking the fifth wala problem. Okay, I'm taking the fifth first wala. Okay, U dot V, we have to find out if mod U is equal to 2, mod V is equal to 5. Okay, and U cross V का mod, like उसका मॉड्यूलस जो है वो 8 दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं? So how do I do it? U दिया है 2, ठीक है, V दिया है 5, V दिया है 5 दिया है, करेक्ट है कि नहीं? एंड U क्रॉस V का मॉड दिया है 8, करेक्ट और नॉट? Yes. So what is mod of A cross B? Is it not mod A into B into sin theta? है कि नहीं? ऐसे रहेगा ना? है कि नहीं? यही है ना? Yes. और कुछ है क्या? हाँ. So if 8 is equal to what? U into V, मतलब यहाँ पे U और V रहेगा instead of A और B, ठीक है? तो U into sin theta, correct? So sin theta comes to be, sin theta comes out to be what? 8 by 10? 8 by 2 into 5. 10. Yes. By 10, right? So cos theta comes out to be what? Under root of 1 minus 64 by 10 is equal to how much? 6 by 10, correct? And Yes. U dot V is equal to what? U dot V. They have asked us to find U dot V, right? So Yes. U dot V is what? UV cos theta. U V cos theta. ठीक है कि नहीं? Yes. So it is 2 into 5 into 6 by 10. है कि नहीं? Yes. Which is equal to 6. ठीक है? Fine. Now let us check the problem here. They are saying that A dot B is equal to A cross B का mod, ठीक है? So that means that sin theta is equal to cos theta ऐसा दिया हुआ है. Okay. So what will be the angle between A and B? एक तो sin theta is equal to cos theta, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? इसके दो सॉल्यूशन रह सकते हैं, ठीक है? एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, करेक्ट? या तो दोनों नेगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है, और दोनों मतलब सेम क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेम ही क्वाड्रेंट में रहना चाहिए ना, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है कि नहीं? सो A dot B is equal to A cross B मतलब एक ही चीज है ना, sin theta is equal to cos theta. Yes. Okay. So when we say sin theta is equal to cos theta, तो मतलब या तो मेरा थीटा is equal to 45 है, या मेरा थीटा is equal to क्या है? 180 plus 35. 180 plus 35, 180 plus 45 मतलब कितना? 225. ठीक है? या तो दोनों के बीच में एंगल ऐसा है, मतलब ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल ये तो 45 है, या फिर कितना है? 180 से थोड़ा ज्यादा, मतलब कितना? लेट अस से ऐसा, है कि नहीं? 225 ऐसा, ठीक है? है कि नहीं? Yes. So 12th वाला problem is a good problem, you can do that, ठीक है? 12th वाला problem is a good problem, you can do that. A cross B is equal to C दिया हुआ है. You just assume B as some vector x, y, z, okay? Then you put it in the matrix, find one equation of this thing, okay? है कि नहीं? x, y, z के एक इक्वेशन आएगा एंड A dot B से तुमको दूसरा इक्वेशन आएगा, है कि नहीं? ठीक है. Now
we go to the last section of this chapter, which is scalar triple product. Or do you want to do question number 18 also? Yes, we can do. Okay. So if A are 2 points, then find the foot of the perpendicular from the point B to the line joining origin and A. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here A is equal to 1, 2, 3, and B is equal to 4, 5, 6. Correct? And what are they asking? They are asking the find the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular मतलब क्या? मतलब वो let us say ये एक line, ये let us say this is origin. This is वो vector मिड A. पॉइंट नहीं मिड पॉइंट नहीं, foot of the perpendicular मतलब ये मेरा B है. Let us say they are asking to find this particular point. हाँ वही मतलब मैं वही कह रहा था, वही बीच का पॉइंट. हाँ, it may not be the mid point. Okay, ये कहीं भी रह सकता है. ठीक है? अच्छा, ये कहीं भी रह सकता है. So this is, let us say, so A vector हमको दिया है. ठीक है? Now let us say this is let this point be some x comma y comma z. Correct? है कि नहीं? x comma y comma z है. ठीक है? This point where it is perpendicular. Okay? So I have vector A and I have vector let us say this point is some P. Okay, fine. So A is perpendicular to PB. Correct? A is perpendicular to PB. So A dot PB is equal to 0. Correct? A dot PB is equal to 0. है कि नहीं? 0. हाँ. Okay. And so अगर मेरे पास A दिया हुआ है 1, 2, 3. Correct? Fine. And PB मेरा कैसा रहेगा? PB मेरा रहेगा let us say x minus 4. ठीक है? y minus 5, y minus 5 and z minus 6. ठीक है? So I have what? X minus 1 into 1 plus y minus 5 into 5 plus z minus 6 into 3. X minus 1 into 1, y minus 5 into 2. ठीक है? And z minus 6 into 3 is equal to 0. ठीक है? Yes. Okay. And what is the other thing? What is the other equation you'll get? Let us say ये A है. ठीक है? Another equation अब मैं कैसे लाता हूँ यहाँ पे देखो. Let us say this is A. ठीक है? This is B. ठीक है? Fine. Yes. And this is the perpendicular from B to A. Okay. Okay. Now this A and B. Okay. And this now this all these three lines will be in coplanar. Correct? Actually, this is origin. Okay. This is B. This is A. Okay. Fine. So what is AB? AB is equal to B minus A, right? B minus A. Yes. Okay. Now this B minus A. Okay. And we have also B cross A. Okay. B cross A. Okay. Yes. So if we have B cross A, it will be out of the plane. Okay. So B cross A dot PB. ये PB है ना मेरा वेक्टर. ठीक है? Okay. This will also be 0. Correct? Yes. Fine. So if I have I
J, K, okay, and if I have 1 2 3, okay, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ, ठीक है, उस जीरो ही रहने वाला है, ठीक है. So if I find out the cross product, so I into 6 to the 12, 12 minus 15 minus 3 plus J into what? 12 minus 6. 12 minus 6 is 6 plus K into 5 minus 8 is again minus 3. ठीक है, या अब यहाँ पे I'll take this minus 3 common, or 3 common actually. If I take 3 common, it is minus I plus 2J plus K, sorry, minus K, ठीक है, and this again, if we basically multiply it with what? We multiply it with x minus 4, है कि नहीं? Yes. minus 4 ऐसे ही किया ना? हाँ, यहाँ पे x minus 4 है, ठीक है. So I take x minus 4, then y minus 5, and this is z minus 6, ठीक है. Yes. So that will also be 0, correct? That will also be 0. So this is x minus 4 into minus 1 plus 2 into y minus 5, okay, plus minus 1 into z minus 6. This will be equal to 0. ठीक है, ये 3 तो हट गया ना यहाँ से, क्योंकि 3 मतलब ये तो 0 से इक्वेट करना है, तो 3 हट गया यहाँ पे, ठीक है. सो अब हमको दो इक्वेशंस मिल गए, लेकिन हमको 3 वेरिएबल चाहिए, करेक्ट? हमको 3 वेरिएबल चाहिए ना, ओके, मतलब 3 इक्वेशंस चाहिए ना, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस चाहिए हमको, है कि नहीं? नाउ हाउ डू वी गेट द थर्ड इक्वेशन? हाउ डू वी गेट द थर्ड इक्वेशन? ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और ये दूसरा एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास में. नाउ हाउ डू वी गेट द थर्ड इक्वेशन? और क्या दिख रहा है इस फिगर में से? अनदर इक्वेशन विल गेट इज, अगर सपोज हमने पीबी क्रॉस ए लिया, ठीक है, पीबी क्रॉस ए लिया मैंने, ठीक है, और उसको मैंने अगर सपोज डॉट प्रोडक्ट विद बी लिया, सो दैट विल आल्सो बी 0, राइट? वो भी आउट ऑफ प्लेन है कि नहीं? पीबी क्रॉस ए लिया, सो द थर्ड इक्वेशन हाउ विल आई गेट इज आई जे के, ठीक है, एंड हियर if I know what is pb, it is x minus 4, ठीक है, y minus 5, z minus 6, and pb क्रॉस a ले रहा हूं ना मैं, 1 2 3, okay, dot your b vector will also be equal to 0. This will give you the third equation, and then you can solve it, okay. ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, but this is one of the methods to do it, okay. Yes. So what is a scalar triple product, Manas? Scalar triple product, actually I don't know, I only learned about two products only. So डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है मानो a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है. तो उन्होंने प्रॉपर्टी दी है कि साइक्लिक चेंजेस आल्सो अलाउड यहाँ पे, ठीक है, फाइन. Yes. A single interchange of vectors in a scalar vector changes the sign of its value. Obviously, मतलब मैं मैट्रिक्स में अगर सपोज ये जो है मैं b1 b2 और a1 a2 को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है. Yes. Yes. ऐसा कुछ दिया है, ठीक है.
So if the row of a determinant can be expressed as a linear combination of the other two vectors, then the determinant is 0. Okay, fine. Yes. इसका ये मतलब है कि the third vector is basically any two vectors are collinear and the three vectors are coplanar. इसका यही मतलब निकलता है. मतलब Yes. दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रहा है कि एक वेक्टर मेरा 0 वेक्टर है, ठीक है. दूसरा कंडीशन है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. ओके, और द थर्ड कंडीशन इज द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनार. ठीक है. Yes. सो द scalar triple product is nothing but this thing, A dot B cross C between three vectors. Okay, it is nothing but this only, A dot B cross C. ऐसे ही तो है ना, IJK हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, IJK लिखते हैं ना. तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज हम लोग लेट अस से दिस इज A वेक्टर, दिस इज B एंड दिस इज C. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ये पूरे इससे मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, आई को ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, राइट. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय दैट. ठीक है. Okay, but So okay, I don't know how much this is important. Volume of tetrahedron with coterminous edges A, B, C is they have given it as 1/6 A, B, C. मतलब 1/6 of A dot B cross C. May not take the proof, but this is a very important property. A cross B cross C is equal to A dot C B minus A dot B C. ठीक है. Right? Yes. So this is a vector triple product. हमने जो पहले देखा था वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. And okay, just I should not be overloading you with information because ये काफी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. These things will come in your engineering, coplanarity and linear combination and all those things. Okay. Yes. ये यहाँ पे सब वेरीफाई वाले ही प्रॉब्लम्स है. ठीक है. एंड दीज आर क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम्स. ठीक है. I don't intend to take you much deeper into this thing. Okay, exercise 5.5. We can quickly go and move to the next chapter, that is lines and planes. Okay. Yes. Yes. Just go through this thing. Okay, this theory, ये theory जो है अच्छे से लिखते नहीं है काफी बार स्टेट बोर्ड में. Scalar projection of vector A on vector B is given by A dot B by B. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं तुमको. Just remember this thing. Okay. Vector projection of A on B is given by A dot B by mod B whole into the unit vector B. ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. So these two things, इसके मैंने क्वेश्चंस देखे थे यहाँ पे एक्सरसाइज में, but they have not properly explained it in the theory section. Okay. Yeah, so I guess we have mostly covered the important parts of the chapter. Okay, we can quickly go to the lines and angles wala part. Okay. Yes. Yes. Just revise the concept of this coplanarity and collinearity. Okay, कि किस conditions में vectors collinear है, किस conditions में vector coplanar है. Okay. Okay. Yes. Maybe at the end of this session I will just once again revise it कि collinearity और coplanarity क्या है करके. ठीक है. Okay. So we have equation of a line passing through a given point and parallel to the given vector. Okay, these are some standard theorems. If we basically look what all things are covered in this lines and plane, we have vector and Cartesian form of a line. मतलब दोनों फॉर्म स्टडी करना है अपने को.
passing through a point हाँ. parallel to a vector के vector form and Cartesian form. Okay, passing through 2 points का भी हमको करना है study. ठीक है. Then there is a distance of a point from a line. Okay, then there is a distance between skew lines. Okay, and there is distance between parallel lines. Okay, so then there are equations of plane. So there are various equations of plane: passing through a point and perpendicular vector, passing through a point and parallel to 2 vectors, passing through 3 non-collinear points in a normal form. So this becomes a little bit confusing. We should spend, or at least you should spend some more time in understanding. मैं इस सेशन में सिर्फ तुमको फॉर्मूला ही दे सकता हूँ. You have to go and practice. Okay? ठीक है? एक एक प्रॉब्लम करके देखो हर एक इसका. ठीक है? Because we are very short of time. Okay, and then there is angle between planes, angle between line and a plane, and the last is coplanarity of two lines and distance of a point from a line. Okay. Yes. So if we have to first, let us say if we have to consider the equation of a line which is passing through A and parallel to a given vector. Okay, it is passing through A and it is parallel to B. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है. It passes through A and is parallel to B. So that line is denoted by R is equal to A plus lambda B. Okay, where A is the passing vector and B is the parallel vector. ठीक है. Yes. Fine. Then अगर सपोज हमको ऐसा दिया हुआ है, अब ये सेम चीज है. सेम चीज है. Here if they have given that it is passing through x, y1, z1 और उसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हमको, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, लेट अस सी, और डायरेक्शन कोसाइंस भी दिए है ना, दोनों में से कुछ भी एक चीज दी है. सो वी, तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा? x minus x1 by a plus y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. ठीक है. Yes. I'm just writing it once again. So this is in ordinate form, in vector form. And अगर suppose हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, so it is x minus x1 by a plus is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, where x1, y1 and z1 are nothing but the points through which this line is passing, and a, b and c are the direction ratios. Direction cosines means it is parallel to ABC, no? It is parallel to ABC. It is parallel to ABC and it is passing through x1, y1, z1. Simple है, right? उसी की तरह है ये. Yes. ठीक है. Fine. Yeah. Now you can मतलब वो x1 y1 a वेक्टर हो गया और नीचे वाला b वाला वेक्टर. हाँ. a plus lambda b के हिसाब से है ना? हाँ. You can rejoin the meeting now. Yeah. Okay. So एक नोट दिया है उन्होंने, in Cartesian form line cannot be represented by a single equation. ठीक है? Yes. So yeah, equation of a line passing through 2 points. Okay? Simple है, कुछ नहीं है. यहाँ पे बस B और A दोनों में से पास कर रहा है. ठीक है? तो हमें that means it is parallel to B minus A, right? It is parallel to B minus A. तो हमको बस A plus lambda B plus lambda A भी कर सकते हैं. B plus lambda into B minus A, ये भी इक्वेशन हो सकती है. ठीक है? ये भी हो सकती है. ठीक है? Yes. अगर सपोज उनका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इट विल बी x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1. यहाँ पे x1 ऊपर जो x1 जो है ना, और जो y1 है उसकी जगह पे x2 y2 और z2 भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू दैट आल्सो, राइट? है कि नहीं? हाँ. Yes.
जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे a प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए ना, यहाँ पे b प्लस लैम्डा ऐसे भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस। ठीक है। सो आई जस्ट टेक वन सॉल्व एग्जांपल हियर। ओके, सॉल्व एग्जांपल ऐसा दिया है उन्होंने, verify that the point having position vector 4i minus 11j plus 2k lies on the line r plus lambda this thing. Okay, so अगर सपोज मुझे ये वेरीफाई करना है, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सो व्हाट विल आई डू? ओके, 4i minus 11j plus 2k r is equal to 4i माइनस क्या है 11j plus 2k। अब ये मैंने सीधा r क्यों लिख दिया यहाँ पे? r तो मैंने बोला है लाइन है करके, क्योंकि इसके इसके थ्रू पास हो रहा है ना, ये जो लाइन है इसके थ्रू पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है कि नहीं? तो दिस r will be equal to some a plus lambda times b, करेक्ट? एंड a और b उस लाइन के लिए हमको दिए हुए हैं, ठीक है नहीं? फाइन हमको, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास में मैं अब क्या करता हूं यहाँ पे, आई टेक दिस 4 इक्वल टू a का जो कौन सा वेक्टर है, x वेक्टर, और द x कोसाइन इज 6 प्लस 2 लैम्डा, 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 लैम्डा, राइट? 6 प्लस 2 लैम्डा है, ठीक है। माइनस 11 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा, माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा, करेक्ट है कि नहीं? यस। एंड योर 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा, 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। ओके, ऐसा ही आएगा ना मेरे पास में? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? आई एम गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन से -1 आया मेरा। इससे कितना आया? इससे भी -1 ही आया ना मेरा, इससे भी माइनस, और इससे कितना आया? इससे भी लैम्डा इज इक्वल टू -1 आया। तो हो गया ना, प्रूफ तो हो ही गया मेरा। ये लाइन जो है वो सेटिस्फाई करती है, तीनों एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करती है मेरी तीनों। अगर लैम्डा मुझे अलग मिलता, दैट उसका यही मतलब होता कि द पॉइंट डज नॉट पास थ्रू, द पॉइंट डज नॉट पास थ्रू दिस लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट है वेक्टर पॉइंट, ये इस लाइन से पास नहीं करता, ठीक है। यस। Find the equation of the line passing through the point having position vector this and parallel to vector this। तो ये तो सिंपल है, ऐसे ही करना है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं खास। Now let us take काफी सारे सॉल्व एग्जांपल्स है, बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल लेते हैं। दैट इज वन गुड थिंग अबाउट स्टेट बोर्ड। ओके, मिस्टेक्स करते हैं, काफी सारे मिस्टेक्स करते हैं, बट दे गिव यू लॉट ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स। Now they are asking that एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, x plus 1 by -10 is equal to y plus 3 by -1 is equal to z minus 4 by 1। okay, now ये लोग बोल रहे हैं कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो इंटरसेक्ट कब करेंगे ये लोग? इंटरसेक्ट कब करेंगे ये लोग? जब मतलब जब एक दूसरे से पास हो रहे होंगे तब ना, पास, मतलब एक कॉमन पॉइंट है, राइट? कॉमन मतलब पॉइंट। हाँ हाँ। 3D में कैसा होता है, ऐसा हो सकता है कि 2D में तो या तो दो लाइंस पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, दो ही केसेस है ना, है कि नहीं? बट 3D में ऐसा है, सिंस देयर इज अ थर्ड डायमेंशन कमिंग, कभी क्यू लाइंस भी होते हैं, लोग उनको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पैरेलल है या कुछ है, दे आर जस्ट क्यू लाइंस। क्यू लाइंस मतलब कि दे आर जस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे और दूर हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विल कम एट अ मिनिमम डिस्टेंस एंड दे विल सेपरेट अवे। ओके, तो उनको बोलते हैं। Now show that x plus 1 by -10 is equal to y plus 3 by -1 is equal to z minus 4 by 1. This is equal to
ये जो लाइन है and this lines intersect each other. Can you memorize this thing once? X plus 1 by minus 10. मेरे लिए कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay. हाँ मैं कर दूँ. Is equal to what? X plus 1 by minus 10, एक y plus 3 by minus 1, Y plus 3 by z minus is equal to और z minus 4 by 1. Z minus 4 by Z 1. minus 4 by 1. Now let us say this is equal to some lambda 1. Okay. ठीक है. Yes. अब दूसरा क्या है मेरे पास लाइन x plus 10 by minus 1. Yes. X plus 10 by minus 1. हाँ. Y plus 1 by minus 3. Y plus 1 by minus 3. Okay. And Z minus 1 by 4. Equal to Z minus 1 by 4. Well, let us say this is equal to some lambda 2. ठीक है. Okay. Yes. अब मैं पहले वाले इससे x का एक कोऑर्डिनेट निकालता हूँ. ठीक है. x is equal to say let us x is equal to some minus 10 lambda 1 minus 1. ठीक है. And दूसरे वाले इससे x is equal to some minus lambda 2 minus 10. ठीक है. ओके. अब इससे मैं लैम्बडा 1 और ये दोनों x को मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना. अगर इंटरसेक्टिंग है तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ. राइट है कि नहीं? हाँ. सो लेट अस से आई डू minus 10 lambda 1 minus 1 is equal to minus lambda 2 minus 10. Correct? Yes. Okay. So I get, what do I get? 10 lambda 1 minus lambda 2. Okay. Is equal to क्या है मेरे पास में? Is equal to 9. ये एक आएगा मेरा इक्वेशन. ठीक है भाई. अब मेरे पास में मैं y को देखता हूँ. ठीक है. सो y इज इक्वल टू मेरे पहले वाले इससे क्या आता है? पहले वाले इससे आता है मेरा माइनस लैम्बडा 1 माइनस 3. ठीक है. एंड y दूसरे वाले इससे क्या आता है? माइनस 3 लैम्बडा 2 माइनस 1. अब मैं इन दोनों को भी इक्वेट करता हूँ. ठीक है. इन दोनों को भी इक्वेट. तो क्या आता है मेरे पास वैल्यू? माइनस लैम्बडा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्बडा 2 माइनस 1. ठीक है. तो मेरे पास आता है लैम्बडा 1 माइनस 3 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है. सो लैम्बडा 1 माइनस 3 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस -2. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ. यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के लिए सॉल्व करता हूँ. ठीक है. अब सपोज मुझे लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की ऐसी वैल्यूज मिली कि मेरा Z1 और Z2 भी इक्वल हो गया. ठीक है. इसका ये मतलब है कि इंटरसेक्ट करेगा. इसका ये मतलब इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है. तो what I do is I multiply this thing. अगर सपोज मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं. ठीक है. 10 lambda 1 minus lambda 2 is equal to 9. 10 lambda 1 minus lambda 2 is equal to 9. ठीक है. मैं अगर गया तो lambda 1 minus 3 lambda 2 is equal to -2. lambda 1 minus 3 lambda 2 is equal to -2. So 3 lambda 2 minus lambda 1 is equal to 2. इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा. ठीक है. एंड ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है. सो आई गेट 30 lambda 1 minus 3 lambda 2 is equal to 27. ठीक है. So 29 lambda 1 is equal to 29. I get lambda 1 is equal to 1. If I get lambda 1 is equal to 1, I'll get lambda 2 will also be equal to 1. ठीक है. Yes. फाइन. मुझे अभी lambda 1 और lambda 2 की वैल्यू मिल गया मुझे. है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा? नहीं सॉरी, मैं lambda 1 is equal to 1 लिया ना मैंने. lambda 1 is equal to अगर 1 लिया so lambda 2 is equal to 1 by 3. sorry what I'm doing here, 2 plus 1. हाँ,
लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 ही है, सॉरी, ठीक है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 ही है मेरे पास में। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 ही आएगा। यहाँ पे लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 3, करेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद में व्हाट डू आई डू, आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। z इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा 1 प्लस 4 मतलब 5, ठीक है, और इसका भी अभी सेम ही आना चाहिए ना मेरे पास में। सो z इज इक्वल टू लैम्डा 2 4 लैम्डा 2 प्लस 1, ये भी 5 ही आता है। सो इसका मतलब है कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मेरा z का वैल्यू अलग आता, अगर मेरा z का वैल्यू अलग आता, देन आई वुड से कि नहीं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी भी हालत में। बट सिंस मेरा z का वैल्यू भी आ रहा है, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यस नाउ फाइंड द, ओके, ये तो सारी काफी सिंपल प्रॉब्लम्स है। अब ये बोल रहे हैं कि this show that the line x minus 2 by 1 is equal to y minus 4 by 2 is equal to z plus 4 by minus 2 passes through origin. How will you prove this? if origin से पास होता है कि नहीं होता है? Again you equate that to lambda, okay, x की वैल्यू जो है वो फिर let us say 0, x की वैल्यू भी 0 पुट करो उसमें, lambda की वैल्यू फाइंड करो, and then you will get some value of y that should be also equal to 0, or you will get some value of z that should be also equal to 0 for the lambda. Let me do it for you. x minus 2, x minus 2 by क्या दिया है, x minus 2 by 1 is equal to y minus 4 by y minus 4 by 2, हाँ, is equal to z plus 4 by z plus 4 by minus 2, ठीक है। Let us say this is equal to lambda, so x is equal to lambda plus 2. Now let us say मैं x is equal to 0 पुट करता हूँ, ठीक है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है ना, वो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, आई एम अज्यूमिंग। तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू -2 आएगा। अगर मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू -2 आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा y भी 0 होगा और मेरा z भी 0 होगा, ठीक है, फाइन, तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ओके, इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्फा माइनस a होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस a डॉट b बाय मॉड b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है, इसके अलावा जो है कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। यस बिकॉज तुम प्रूफ करने जाओगे, इसको फाइंड आउट करने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, ठीक है। ओके, नाउ उन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया था वो वेक्टर फॉर्म के लिए दिया था, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है, तो तुम ये पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ओके, सो वो बोल रहे हैं कि लेट अस से मैं एक एम पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो कैसे रहेंगे इसके, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब वो उसको डॉट प्रोडक्ट किया तो 0 आएगा, राइट, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना मेरे पास में, ठीक है नहीं। उसके बाद में लैम्डा में एक ही इक्वेशन है मेरे पास में, एंड आई गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1, मतलब 5 लैम्डा माइनस 3 इनटू क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने यहाँ पे माइनस, ओके, यहाँ पे ये चीज जो है ये कंसेप्ट ज्यादा है, फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला बहुत ज्यादा दिखते हैं। लेट अस से हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, लेट अस से पॉइंट है, ठीक है, ये, और यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 0,2,3 पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, 0,2,3 पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। अब ये, और हमको कार्टेशियन में दिया है ना हमको,
लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन में दिया है, ठीक है, एंड वो कैसा हाँ। दिया है, x + 3/5, x + 3/5 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू y - 1/2 दिया है, ठीक है, y - 1/2 दिया है, इज इक्वल टू z + 4/3 दिया है, ठीक है, z + 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस से दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, एंड वी हैव ये पॉइंट भी तो ये अज्यूम करेगा ना, मतलब ये वैल्यूज अटेंड करेगा, राइट, है कि नहीं। सो लेट दैट पॉइंट बी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए मुझे ये पॉइंट मिलेगा ना, कोई भी पर्टिकुलर लैम्बडा के, मेरे इनफाइनाइट लैम्बडास है, मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन के ऊपर, है कि नहीं। फॉर वन पर्टिकुलर लैम्बडा आई विल गेट दिस पॉइंट व्हिच इज लेट अस से m, okay, and m is equal to what, 5 lambda minus 3 comma 2 lambda plus 1, ठीक है, comma 3 lambda minus 5, ऐसा ये मुझे पॉइंट मिला, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेगा, 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0, राइट, 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0, करेक्ट, 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2, करेक्ट, एंड 3 लैम्बडा माइनस 5 माइनस 3, करेक्ट, है कि नहीं। नाउ दिस, इसका अगर सपोज इस वेक्टर का मैं इस लाइन के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूंगा, अब लाइन की मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पता है ना, 5 to 3, है कि नहीं, 5 to 3 पता है मुझे, तो मैं 5 डॉट किया, 2 डॉट ये किया, और 3 डॉट ये किया, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने आई जे के का, है कि नहीं, इन दोनों का मैंने निकाला, मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड आई विल गेट वन वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की एक वैल्यू मुझे मिली, ठीक है, एंड उसके बाद में लैम्बडा की एक वैल्यू मुझे मिली, एंड आई एम एबल टू फाइंड द पॉइंट और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। यस। नाउ स्क्यू लाइंस, मैंने जैसे बताया था वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, अगर सपोज उनको दिया है कि स्क्यू लाइंस है, ठीक है, तो और इनके बीच में डिस्टेंस नॉन जीरो कब रहेगा, व्हेन a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रट लो, कुछ नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, ओके, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, और ये पूरा डिस्टेंस है तो ये मॉड ही रहेगा, ये पूरा मॉड ही रहेगा। नाउ द पॉइंट इज मानस कि यहाँ पे b1 and b2 are the vectors which are parallel to the line and a2 and a1 are the vectors through which the line is passing, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ओके, फाइन। यस। अब जब ये तुमको ऐसे अगर कोई लाइन दिया होता है तो कार्टेशियन को तुमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आना चाहिए, ठीक है, कार्टेशियन को तुमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आना चाहिए, ठीक है, यस। सो 2 2 3 4 जो है वो तुम्हारा पैरेलल वाला वेक्टर है, ठीक है, फाइन, एंड ये जो ऊपर वाला है 1 2 3 जो है दैट इज योर वेक्टर थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, ठीक है, तो ये एक ही जगह आता है, 1 2 3 एक ही जगह आया, और ये जो 2 3 4 है वो तुम्हारे बी के जगह आया, ठीक है, साइंस साइंस मैटर नहीं करती ना, वो साइंस मैटर करते हैं, यहाँ पे -1 है तो तुमको यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे x - x1 रहता है ना फॉर्मूला में, है कि नहीं, हाँ हाँ समझा, समझ गया ना, साइंस मैटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम -3 नहीं लिख सकते, प्लस यहाँ पे फिर वो पूरा ही Z+3 होता तो मैं -3 लिखता। हाँ, अगर Z+3 होता तो यहाँ पे -3 लिखते, ठीक है, फाइन, समझ गया ना, और ये जो नीचे वाले जो साइंस है वो भी मैटर करते हैं, अगर ये -3 होता तो यहाँ पे तुम, मतलब ये सॉरी, ये अगर -3 होता तो तुम यहाँ पे भी -3 लिखते, ये अगर -3 होता तो तुम यहाँ पे भी -3 लिखते, ठीक है, देन यू अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अगर पूछा है, स्क्यू लाइंस हमने देखा था अभी तक, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अभी तक नहीं देखा था, ठीक है,
इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जस्ट, अगर पैरेलल लाइंस है तो वो सेम इससे क्रॉस करेंगे ना, है कि नहीं? पैरेलल लाइंस अगर है तो उनके लिए पैरेलल वेक्टर जो बी वाला जो है वो तो सेम ही रहेगा, राइट? है कि नहीं? हाँ राइट। हाँ सो उस केस में जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस के बीच में वो ऐसा रहेगा, ठीक है? यस वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, रटना ही है भाई, दोनों फॉर्मूलेज रटना है। दिस इज अ वेरी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज, आई एम लिविंग इट अप टू यू, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है? एक्सरसाइज 6.2 is I'm leaving up to you. Now we have to enter the area of planes. Okay? Area of planes. Now plane determine करने के 4 तरीके दिए हैं ना, ठीक है? प्लेन डिटरमाइन करने के 4 तरीके दिए हैं, ठीक है? एक ऐसा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो प्लेन बनाते हैं, है कि नहीं? They will intersect in a plane only, right? They will intersect in a plane only, ठीक है? अब टू पैरेलल लाइंस है, तो जो भी प्लेन वो दो पैरेलल लाइन से पास होता है वो भी प्लेन ही है कि नहीं? सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस, ये अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा प्लेन ही है इनका, राइट? है कि नहीं? एंड प्लेन इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ओके? इट इज इनफाइनाइट इन ऑल द डायमेंशंस, ठीक है? ओके, आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी, डू यू नो व्हाट इज माय कंपनीज नेम? नो Okay. So, fine. I'm working for Dassault Systems. Okay. Dassault Systems का जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, we make a 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर. So जब हम लोग 3D में डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोगों को सारे प्रोजेक्शंस निकालने पड़ते हैं. अगर एक पॉइंट हमको, पॉइंट तो हम अभी स्क्रीन तो 2D है हमारा, राइट? हमारा जो स्क्रीन है वो तो 2D है, बट हमको दिखाना कैसा है? 3D की तरह दिखाना है हमको, राइट? तो वो अगर सपोज मैंने एक लाइन बनाया स्क्रीन पे, एंड इफ आई रोटेट दिस लाइन अबाउट दिस एक्सिस, कौन सा एक्सिस? लेट अस सी एक्स है, ये वाई है और ये जेड है. तो मैंने अगर इसको अगर मैंने इस वेक्टर को अगर मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया तो लाइन कैसे दिखेगा? दिस इज, इसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस और काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखे गए हैं, फाइन. एंड उसके बैकएंड में जो भी कैलकुलेशंस है वो सारे के सारे मैंने जैसे बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेक्टर्स एंड प्लेन्स, ये सारे किए गए हैं, ठीक है? काफी कॉम्प्लेक्स. सो योर पेरेंट्स हैड एक्चुअली रिक्वेस्टेड मी टू टेल यू द एप्लीकेशन. मैंने हर एक चीज को ऑलमोस्ट एप्लीकेशन बताया है कि नहीं? हर एक चीज का एप्लीकेशन बताया है. मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बताया था, मैंने लाइंस एंड प्लेन्स का बताया है अभी, ठीक है? आई टोल्ड यू अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, ठीक है? हर एक चीज का एप्लीकेशन है. You have to just be in the right place to apply, okay? And to be in the right place you have to work hard, and you have to be first enter a good place to be in the right place. A good place क्या है? Good engineering college, right? Good place में तो जाना पड़ेगा ना पहले, ठीक है? So now if we see what is the equation of a line passing through a point and perpendicular to a vector, so it is r dot n is equal to a dot n, or r minus a dot n is equal to 0. So this is the standard form of a line which is passing through a point and perpendicular to a vector. है कि नहीं? एक पॉइंट है मेरे पास में, it is passing through that point r minus a, ठीक है? And it is perpendicular to the normal vector. So मेरे पास इक्वेशन क्या आया? r minus a dot n is equal to 0, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? सिंपल है, राइट? ये मेरा पॉइंट r है वो प्लेन में, देयर इज सम पॉइंट p, सम पॉइंट a, और मैं अगर सपोज r माइनस a निकालता हूँ तो हमेशा n से परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो इस नॉर्मल वाले वेक्टर से तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? और उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहेगा. सो दैट इज व्हाई यू गेट दिस इक्वेशन r minus a dot n is equal to 0, ठीक है? यस. सो इफ वी हैव, मतलब उसका भी उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है? उसका उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म भी दिया हुआ है, करेक्ट? सो इफ द पॉइंट इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and whose normal are a b c, then a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 1 is equal to
0. ओके फाइन. Yes. पर काफी एग्जांपल्स दिए हैं. नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी. ठीक है. सो वेक्टर इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए. ठीक है. तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, मतलब ए तो उसमें है ही. ठीक है. तो उसका अगर सपोज उस प्लेन में मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, दैट विल बी सम एपी व्हिच विल बी इक्वल टू आर माइनस ए. ठीक है. और बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रहेगा इस प्लेन का, और बी और सी दोनों से पैरेलल है ना वो प्लेन. बी और सी दोनों से पैरेलल है प्लेन. ठीक है. तो बी क्रॉस सी जो है वो नॉर्मल रहेगा उस प्लेन का, है कि नहीं. दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली. दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली. पहले नॉर्मल था, अब यहाँ पे बस बी क्रॉस सी आ गया. राइट. बी और सी दोनों इस प्लेन से पैरेलल है, तो बी क्रॉस सी जो है वो क्या करेगा, दैट विल गिव मी द नॉर्मल टू दिस particular plane. So r minus a dot that normal is equal to 0. This is the second equation of the plane. ठीक है. Fine. Hello. Yes, yes. Okay. So find the equation of the point, equation of the plane passing through the point a minus 1 comma 2 comma minus 5 and parallel to vectors this and this. तो फर्स्टली हम लोग b क्रॉस c फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. फर्स्टली हम लोग b क्रॉस c फाइंड आउट करते हैं, एंड हम लोग अगर b क्रॉस c मिल गया, ठीक है, हम लोग a डॉट b क्रॉस c फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. a डॉट b क्रॉस c किया, हमको ये मिला. ठीक है. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, r माइनस a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, r माइनस a अगर मुझे देखना है, दैट विल बी हाउ मच, r माइनस a द लाइन AP विच, तो मतलब उन्होंने क्या बोला है कि r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0. राइट. हेलो मानस. Yes, yes. The vector equation of the line passing through point A and parallel to B and C is r dot b cross C is equal to a dot b cross C. ऐसा उन्होंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है. Which is equal to what? 0 ना, है कि नहीं? Which is equal to 0. और तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, ये वाला जो है इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब ये AP डॉट b क्रॉस C, मतलब r माइनस a डॉट b क्रॉस C इज इक्वल टू r डॉट b क्रॉस C इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस C. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है. Yes. So this equation and this equation are basically nothing but the same only. ठीक है. Yes. Now equation of the line passing through non-collinear points A, B and C. अब ये क्या बोल रहे हैं, AB क्रॉस AC फाइंड आउट करना है अपने को. ठीक है. That will be the vector which will be perpendicular to this AP. Correct. एंड सीधा सीधा जो कार्टेशियन फॉर्म का जो मिलता है उनको, दैट विल बी दिस थिंग, एंड द वेक्टर फॉर्म विल बी r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं बट करना पड़ेगा. ठीक है. सो द लास्ट फॉर्म मे बी, आई गेस दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन. Oh, there are some many other forms also. Okay. I don't know ये लोग कितना और डिटेल में जाने वाले हैं करके, because this becomes very very difficult to remember also, right? काफी. Yes. हाँ. CBSE में NCERT में इतना डिटेल में कुछ रहता ही नहीं है, बहुत मतलब ऊपर ऊपर से ही रहता है. वो लोग एक्चुअली डेप्थ पे ज्यादा फोकस करते हैं CBSE में. Here they are mostly like trying to cover most of the portion. जैसे उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतना सारा दिया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. Okay? CBSE does not do that. They just want you to learn some things but in depth. Okay? Here they have like, सब कुछ दे रखा है, करते बैठो. हाँ वही. Okay.
I guess what I would suggest is that you go through this, okay? You try to Yes. solve exercise 6.3, okay? And then we will see whether we require the 6.4 or not. Maybe tomorrow we will see that. Maybe we will take this session for half an hour, okay? You try to solve the problems till 6.3, okay? 6.3 तक सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये आता ही है, ठीक है? ये हमेशा आता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये हमेशा आता है, ओके? Yes. So just go through that. काफी सारे concepts है इसमें. Try to take notes. Try to take notes and see कि कितना तुम कर पाते हो, ठीक है? 6.3 तक try करो. 6.2 I am not asking you to solve. I am asking you to solve 6.3 only, ठीक है? Yes. Now just one second. Yeah. The normal form of a equation of a plane. Okay, so it is r dot n is equal to p. So मेरे पास एक वेक्टर है r, and that r जो है it is actually the point or the direction vector of the point p of the on the plane from the origin, ठीक है? So when we say r dot n, what we are doing? We are trying to find the distance of the point of the plane from the origin. The plane is at a distance p from the origin, ठीक है? Can you see the figure? Yes. Can you see the figure? जब हम Yes. r dot n निकालेंगे, हमको ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस ही मिलेगा, ठीक है? So the equation of the plane automatically becomes Lx plus my plus nz is equal to p, where okay. And here L is nothing but the normal vector. Lm and r is nothing but the normal vector. ठीक है? Just Yes. try to solve. You can ignore this equation of line passing through the intersection of two planes. You can clearly ignore this section, okay? Try to solve the maximum questions from this exercise 6.3, okay? Fine. काफी फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है? काफी फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, ठीक है? And then Yes. we will see whether we require this angle between planes, this concept or not, ठीक है? Okay. काफी सिंपल ही है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? इसमें एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड ऑन, ठीक है? Okay. Now, Yes. one thing I wanted to revise was what is coplanar and collinearity. Yes. So, what is coplanarity? Let us say three vectors. They are collinear. Three vectors are collinear. Okay. When the third vector can be expressed as a linear combination of the first two. Correct? लेकिन अगर तीन वेक्टर्स कोलिनियर तो ऑटोमेटिकली कोप्लेनर ही हो गया, है कि नहीं? अगर तीन वेक्टर्स, ठीक है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर? कोप्लेनर का ये मतलब है कि a combination of a linear combination of all the three vectors is equal to 0. A linear combination of all the three vectors is equal to 0, which actually gives me the equation of the plane also sometimes. Which gives me the equation of the plane also. ठीक है? Yes. So this is a difference between collinearity and coplanarity. ठीक है? Yes. As I said, try to solve exercise 3.6.3. Come to me with the doubts. Okay? Tomorrow there will be a separate doubt session. Okay? Tomorrow is a holiday for me, so you can connect to me anytime. Fine? Okay. Yes. Yeah. And tomorrow, what is the time? No, you ask me. You tell me what is the comfortable time for you. But tomorrow will take only for 1.5 hours. Yeah, only for one and a half hours. It will be purely doubt session. Okay, nothing else. Okay. Yes. I guess most of the concepts are clear. Yes. You can just go through this. Let us remember wala. ठीक है? Remember this for line. ठीक है?
फॉर प्लेन, ठीक है, एंड देन दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ओके, टू रिवाइज। इसके बेसिस पे तुम 2-3 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, हो जाएगा, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, चलेगा, यस, ओके, या, चलो बाय। बाय। So we'll do some solved examples, sorry, some unsolved examples from the miscellaneous. We're first time doing it because these are objective questions, and we didn't have time to solve the test from this particular section. Okay. हमारे यस, पास time नहीं था. Can you try the first one? यस, इसमें सिंपल है, हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज दिए, राइट, फाइन, हाँ, ऑलमोस्ट 3 2 यस, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दिए 2 लाइन के। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो उनका जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0, करेक्ट, वो 0, यस, हाँ, मतलब यहाँ पे बस ऐसा A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 यस यस, इक्वल्स टू 0 रख जीरो दिया। करने से, जीरो करने से आंसर आ हाँ, जाएगा, ठीक है, जीरो करने से आंसर आ हाँ जाएगा, भाई, क्योंकि हाँ, हाँ, लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि जो दो वेक्टर्स हैं इनके जिनसे पैरेलल है, सो अ लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सम पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सम पैरेलल टू सम वेक्टर, राइट। तो अगर दीज लाइंस ऑफ यस, परपेंडिकुलर है तो वो दो वेक्टर्स जो है वो भी परपेंडिकुलर होंगे, करेक्ट। सो हाँ, दिस इज द हाँ, कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड कि कैसे, मतलब मैं रैंडमली नहीं कर रहा हूँ ना इक्वेट जीरो से, आई एम रैंडमली नॉट इक्वेटिंग। अगर सपोज मेरी लाइन इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब हाँ, हाँ, पैरेलल है, और दूसरी लाइन मेरी इस वेक्टर से अगर परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, सो लेट अस से वेक्टर ए है, हाँ, लेट अस से वेक्टर बी है, इनके इन दोनों लाइंस के कुछ डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एंड इफ दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ दे आर मेकिंग एन एंगल 0, देन उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट है कि नहीं। 0, हाँ, सो इफ पहले वाले इसका 3 4 एंड 1, ये पहले लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, दूसरे लाइन का मेरे पास में K3 एंड K-1 है, करेक्ट, K3 K-1, K3 एंड K-1 है, ठीक है। सो अगर K3 एंड K-1 है, 3 4 1 है, सो पहले वाले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 3/√9 + 16 + 1, क्या है वो, 9 + 16 क्या है, मतलब 3² + 4², 9 + 16 क्या होता है, 25 25 + 1 26, 26, 6, ठीक है, डॉट के बाय उसका जो ये रहेगा अपना इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो का टोटल जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा K² + 3² प्लस, है कि नहीं, K² + 3² प्लस K-1 होल स्क्वायर, राइट। तो ऐसा मैं 3 हाँ, डॉट के 3 डॉट मतलब 3 इंटू के प्लस 4 इंटू 3 प्लस K-1 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पे तो नीचे यही रहेगा, यस, तो ये तो 0 से इक्वेट करना ना मुझे, तो ये नीचे जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे पास में, है तो कि नहीं, उसका लेने की जरूरत भी नहीं ना, फिर वो जरूरत भी नहीं बस है, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई प्लस करो, करके 0 से इक्वेट 0 से इक्वेट करना, ठीक है, वी विल गेट द आंसर, ठीक है, सिंपल, करना। यस, ठीक है। यस, नाउ सेकंड वाला, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x - 1, व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज़ ये सारे मिसलेनियस है, ओके, एंड दे आर ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप्स, है कि नहीं, दे आर ऑल मिसलेनियस एंड यस, ऑब्जेक्टिव, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके, फाइन। So there are 20 questions, हमने अगर 20 questions पे हमने अगर suppose we are able to solve every question, तो we are done, right, for the exam preparation, मतलब मुझे तो यस, लगता है कि this is sufficient, ठीक है। Now हाँ, the vector equation of the line 2x - 1 is equal to 3y + 2 is equal to z - 2, ठीक है,
तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 3y plus 2 3y z minus प्लस 2 इज इक्वल टू z माइनस 1, z minus 2 z माइनस 2 2 ना 2। हाँ हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज इसको मुझे लाइन फॉर्म में लाना है, मतलब x माइनस एक्स वन बाय टू के फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो मैं या फिर इज इक्वल टू मतलब a एंड इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाय सी, इस फॉर्म में अगर लाना है तो मैं क्या करता हूँ कि पहले पूरे इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, पूरे इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। सो आई विल गेट क्या, x माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू y 3y बाय टू प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस z बाय टू माइनस 1। करेक्ट, ऐसा आया मेरे पास में, हाँ है कि नहीं? हाँ। हाँ सो अब मेरे पास में ये आ गया। नाउ अगेन व्हाट आई डू इज आई डिवाइड, मतलब मेरे पास में ऐसा आना चाहिए ना कि 2x, मतलब ये इस फॉर्म में अगर लाना है मुझे, ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में तो ला ही सकता हूँ ना इसको कभी भी, ठीक है, आई कैन ब्रिंग दिस टू दिस फॉर्म, हाँ राइट। सो लेट अस से मैं यस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 2 ऐसे लिखता हूँ, पहले तो इंडिविजुअली लेता हूँ। सो अगर x माइनस हाफ इज इक्वल टू 3y प्लस 3y बाई टू प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ फिर से 2/3 से मतलब सॉरी 3/2 से डिवाइड करता हूँ, राइट। सो x माइनस हाफ यस बाई 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, y प्लस y प्लस 2/3 आएगा ना मेरे पास, हाँ y प्लस 2/3 आएगा, यस ओके। हाँ और यस इज इक्वल टू क्या आएगा, z बाई टू माइनस हाफ बाय 3/2, ऐसा ही आएगा ना मेरे पास में, ठीक है कि नहीं। ये y प्लस टू ऐसा ही आएगा ना मेरे पास में, z बाई टू माइनस हाफ z बाई टू माइनस वन बाय 3/2, ठीक है, करेक्ट। हेलो मानस, आर यू देयर? हेलो, 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 हेलो। सो अब ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, राइट। मेरे पास में इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, करेक्ट है कि नहीं, हाँ है कि नहीं, हाँ आ गया ना मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ इस फॉर्म में आ गया ना मेरे पास में अभी, हाँ फाइन। तो अगर मेरे पास इस फॉर्म में आ चुका है तो अब मेरे पास में क्या रहेगा, द ए प्लस लैम्बडा भी ऐसा रहता है ना, वो ए प्लस लैम्बडा भी ऐसा रहता है, राइट, करेक्ट। हाँ आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी, a दिस इज द plus lambda b इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। line अब ए यहाँ पे क्या है, yes ए यहाँ पे क्या है, ए इज 1 2 बाई माइनस 2/3 एंड 1/3 and 2, हाँ करेक्ट, ये 2 ना। 2 yes सो सो इट इज लेट अस से आई माइनस 2/3 जे, ठीक है, 2/3 जे माइनस प्लस 2 के, ये तो फिक्स हो गया, प्लस लैम्बडा टाइम्स व्हाट, लैम्बडा टाइम्स क्या रहेगा, लैम्बडा टाइम्स क्या रहेगा, 3/2 1 एंड 3, है कि नहीं, yes 3/2 आई 1 जे एंड प्लस 2 के, 2 के 2 ऐसा ही है, yes 3 के सॉरी 3 के, ठीक है। हाँ तो उसको मैं फिर से ऐसे ही लिख सकता हूँ, राइट, वी आई प्लस 2 जे प्लस 6 के, और ये मतलब ये लैम्बडा बाय 2 को मैं लैम्बडा अलग से लिख सकता हूँ ना इसको, ये अगर 2 कॉमन भी निकले तो हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना यहाँ पे, करेक्ट। yes सो 3i प्लस 2j प्लस 6k, ऐसा ही है,
हाँ ऐसा ही है। 3i प्लस ये 2j Yes. प्लस 6k, एंड विच इज द वन विच इज मैचिंग विद दिस थिंग, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। यस। नाउ उन्होंने बोला है कि द डायरेक्शन रेशियोस, थर्ड वाला क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइंस। कुछ नहीं करना है, बस अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और जो भी आंसर आएगा, मतलब 2 - 3 1, ये एक वेक्टर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस ना, दो लाइंस है मेरे पास में, हाँ। दो लाइंस है, डॉट प्रोडक्ट से तो स्केलर निकलता है ना, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो वेक्टर निकलता है। तो हाँ मेरे हाँ। पास अगर ऐसे दो लाइंस है, इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आउट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर निकलेगा ना, ऐसा आउट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर निकलेगा, सो द आउट ऑफ प्लेन यस। परपेंडिकुलर विल बी पैरेलल, लाइक परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, राइट। तो वो क्या करना पड़ेगा, 2 - 3 1, ये एक वेक्टर, 1 2 - 2, इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब i j k, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पहला वेक्टर क्या हाँ। रहेगा, 2 - 3 1, 2 - 3 1, ठीक है, और दूसरा क्या है, 1 2 - 2, 1 2 - 2, 1 2 - 2 ये ना, ये दूसरा कुछ नहीं, हाँ 1 2 - 2। तो जो भी वेक्टर निकलेगा, दैट विल बी द वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस, ठीक है, वो यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन, यस। करेक्ट, फाइन। हाँ। Length of the perpendicular from 1 6 3 to the line x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ। हम्म। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी अल्फा फ्रॉम द लाइन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। तो हमको ए पता है, ठीक है, हमको बी पता है, और हमको हाँ। अल्फा पता है, राइट। ये सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। एज अ सेड, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, टाइप पॉइंट पे टाइम पे डिराइव नहीं कर सकते तुम इस फॉर्मूला को, ठीक है, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, करेक्ट। कोई डाउट नहीं यस। इसमें, ओके। नहीं। या फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अगेन सेम। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बिटवीन टू लाइंस, ये वाला फॉर्मूला दिया है, a2 - a1 डॉट b1 माइनस b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। b1 b2 अपने को पता है, यस। तो तुमको मतलब कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना, कोऑर्डिनेट से वेक्टर फॉर्म में हाँ कन्वर्ट आता करना है। आता है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, पक्का नहीं। 100%। पक्का। जो यस। डिनोमिनेटर में रहता है कार्टेशियन फॉर्म में, वो रहता है तुम्हारा वेक्टर b, ठीक है, और जो वेक्टर। ऊपर रहता है हाँ x में मतलब पैरेलल जिसको रहता है ना। हाँ वो जिसको पैरेलल पैरेलल रहता रहता है। है, हाँ। और जो ऊपर में जो हाँ। रहता है वो रहता है उसका, जो जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है, ए। ठीक है, हम्म। ए वेक्टर। फाइन। सो दिस इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम्म। ठीक है। फिर नहीं। लाइंस डैश, ये वाला अभी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, दीज लाइंस आर एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एंड कोप्लानर इफ, कोप्लानर कब होते हैं लाइंस, हाँ। ओके। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो, लेट अस से मेरे पास में एक लाइन है, मेरे पास दो लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो ये पैरेलल वेक्टर है, सपोज इसका b1 एक पैरेलल वेक्टर है, इसका b2 एक पैरेलल वेक्टर है, राइट, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग थ्रू सम वेक्टर a, राइट, इससे जा रहा है ना, ये a वेक्टर से पास हो रहा है, a1 वेक्टर से पास हो रहा है, ये हाँ। वाला L1 लाइन, ठीक है, और ये L2 लाइन है मेरा, ठीक है। सो L2 लाइन इज पैरेलल टू b2, L1 लाइन इज पैरेलल टू b1, एंड L1 लाइन इज पासिंग थ्रू a1, एंड L2 लाइन इज पासिंग थ्रू a2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, b1 यस क्रॉस यस। b2 करना है, b1 क्रॉस b2 करना है, और जो b1 क्रॉस b2 रहेगा वो आउट ऑफ प्लेन रहेगा इन दोनों के, है कि नहीं। तो उससे जो हाँ। a1 है, जो a1 है वो a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जीरो रहेगा, राइट, a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जीरो रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे b1 हाँ। b2 क्या है, b1 b2 क्या है, 1 1 माइनस के, k2 1 1 1 माइनस k 2 1 i j k, ऐसा लिया मैंने, ठीक है। हाँ। हाँ। एंड व्हाट इज दैट थिंग, 1 1 माइनस के 2 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाला मैंने, सो i इंटू 1
प्लस 2k, ठीक है, फिर प्लस k इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस k इंटू यस। व्हाट, 2 माइनस k, ठीक है, ये निकला मेरा वेक्टर, हम्म। द वेक्टर हाँ विच इज हाँ। परपेंडिकुलर। अब इससे मेरा ए वन या तो ए2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा ना, है कि नहीं, दोनों का, हम्म बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द लाइन ना, है कि नहीं, हम्म। उसका डॉट प्रोडक्ट मेरा जीरो हम्म। रहेगा, राइट। तो इससे मेरा डॉट प्रोडक्ट मैंने जीरो यस। लिया, तो मैं लेटर से ए वन वेक्टर लेता हूँ। मेरा ए वन वेक्टर इज व्हाट, 2 3 4, 2 3 4 लेता हूँ, ठीक है। तो 2 × 1 + 2k, ठीक है, +3 × -k² -1, ये डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना मैं, +4 × 2 हाँ। - k, है कि नहीं, इज इक्वल टू 0, करेक्ट, यस। है कि नहीं। सो 2 + हम्म। 4k, ठीक है, -3k² -3 +8 -4k इज इक्वल टू 0, ठीक है, हम्म। 4k यस। कट गया, ठीक है, देन आई हम्म। एम लेफ्ट विथ व्हाट, 2 - 3 इज, -1 -1। सो आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, 2 - 3 -3 के स्क्वायर। हाँ हाँ, 3k² 2 -3। +8 इज इक्वल हम्म। टू 0, करेक्ट, ठीक है नहीं। यस। हाँ, तो क्या बचता है अभी फिर मेरे पास में, 7 -3 के स्क्वायर। 7 - 3 k² इज इक्वल टू 0, करेक्ट, k² यस। इक्वल टू 7/3, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास आंसर जो है वो, नहीं मेरा आंसर कुछ अलग निकला था, मे बी एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 2 3 4 की जगह पे, इफ इफ यू हैव वेक्टर, ओके ओके, मैं यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ, आई कैन टेक वेक्टर v1 ऑल्सो, राइट हियर, मैं 2 3 4 की जगह पे मैं वेक्टर v1 लेता हूँ, v1 को ही लेता हूँ मैं, हम्म। ठीक है, क्योंकि हम्म। क्योंकि अगर सपोज मैं v1 क्रॉस v2 लूंगा, ये तो जीरो ही रहेगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दिस 2 3 हाँ 4 आई टेक दिस 1 1 एंड -k, दिस इज 1 + 2k, ठीक है, -k² -1, ठीक है, -k हाँ। into 2 - k is equal to 0, ठीक है, so this becomes 1 + 2k -k² -1 -2k plus k² is equal to 0, k² कट गया यहाँ पे, हम्म। ठीक है, फिर और क्या बचता है मेरे पास में, यस। यस। ये 2 के भी कट हो जाएगा ना, +2 के ये तो, -2 के। हाँ, ये तो वैसे ही जीरो आ रहा है, ठीक है, ये तो वैसे ही जीरो आ रहा है, ओके, क्या करना है फिर इसमें, आई गॉट द आंसर, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, ठीक है, 1 + 2k -k² -1, 1 + 2k into I plus k² -1 into j, ठीक है, और प्लस हम्म। k इंटू, यहाँ पे क्या है, 2 - k, 2 - k, ठीक है, अब इसके साथ मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकेंड,
If I multiply the other one, 1, 4 and 5. Multiply other one, 1, 4 and 5. So मेरे पास में 1 plus 2k minus 4k square minus 4 plus 10 minus 5k is equal to 0. ठीक है, ये अगर आया मेरे पास में, हेलो हेलो मानस, आर यू देयर? यस या यस I'm there. सो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा अभी, माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3k, ठीक है, और 1 minus 4 is minus 3 plus 10 is minus 3 plus 10 is 7 is equal to 0. So 4k square plus 3k minus 7 is equal to 0. Fine. So I Yes. get 4k square plus 7k minus 3k minus 7 is equal to 0. Fine. Yes. Yes. 7k minus 4k. You can take k common. I'll get 4k plus 7 minus 1 into 4k plus 7 is equal to 0. I'll get k is equal to minus 7 by 4 and k is equal to 1. Okay. तो मेरे ख्याल से तो आंसर ए होना चाहिए 1. आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा क्यों है. ठीक है, ओके, we'll take this problem as noted. We'll see that later. Okay, the lines, if I find a solution, I will basically just message you the solution कि क्या है करके इसमें. But I guess दोनों में से एक ही करना है हमको. ठीक है, 1, 4, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, है कि नहीं? 1, 4 और 5 से मल्टीप्लाई किया था मैंने. And I guess my determinant is correct. The determinant is k1 minus k, k1 minus k, 1, 1 minus k, 1, 1 minus k, k2 1, k2 1. So 1 plus 2k, j into minus k square minus 1, k into 2 minus k. This is correct. Okay, fine. I will see the solution and मैं तुमको बताता हूँ कि क्या है करके इसमें. The lines, ये lines are perpendicular, intersecting, skew, coincident. क्या है, कैसे बताओगे 7th वाला प्रॉब्लम? चेक करना पड़ेगा ना अभी, मतलब हाँ, मल्टीप्लाई वगैरह हाँ, करके, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई. इसमें अगर सपोज कोसाइन वेक्टर्स, अगर सपोज जो कोसाइंस है इनके लाइन के कोसाइंस, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता है, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, राइट? तो 1 into minus 2 is minus 2, 2 into minus 4 is minus 8, so minus 2 minus 8 is minus 10, plus 6 3 is 18. It is not equal to 0, so they are not perpendicular. तो परपेंडिकुलर तो नहीं ही है वो लोग, क्योंकि उनका कोसाइन प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है. ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट वेदर दे आर कोइंसिडेंट. ठीक है, कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंट मतलब सेम ही लाइन है, सेम ही लाइन है. सेम लाइन है क्या, दिख रहा है क्या? सेम लाइन है क्या? नहीं, डायरेक्शन कोसाइन ही अलग है ना उसका, तो कोइंसिडेंट तो है ही नहीं. ठीक है, हाँ, अब इंटरसेक्टिंग है कि नहीं ये कैसे पता करें हम लोग? Let us say we take x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 is equal to lambda. ठीक है कि नहीं? इंटरसेक्टिंग है तो लैम्बडा की कोई तो भी वैल्यू दोनों के लिए कॉमन निकलेगी. सो x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3, ऐसा ही दिया है ना उन्होंने. ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू, लेट अस से मैंने लैम्बडा लिया, सो x is equal to लैम्बडा, y is equal to 2 लैम्बडा. ठीक है, एंड z is equal to 3 लैम्बडा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x माइनस, दूसरा क्या दिया उन्होंने, x माइनस 1 बाय माइनस 2, x माइनस 1 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस कौन सा, y माइनस 2 बाय माइनस 4, y माइनस 2 बाय माइनस 4. ठीक है, तो इसमें कोई तो भी लैम्बडा वैल्यू मेरा सेम आना चाहिए, राइट? सो लैम्बडा माइनस 1 बाय माइनस 2, और यहाँ पे y की जगह पे मैं 2 लैम्बडा डालता हूँ, इज इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 2 बाय माइनस 4. अगर डाला ऐसे तो ये कॉमन आता है क्या? हाँ, ये तो मैच हो रहा है मेरा, है कि नहीं? ये मैच हो रहा है ना मेरा.
करेक्ट, हो रहा है। फाइन। हाँ, और जो तीसरा वाला है, मैं 3 लैम्बडा माइनस 2/4, 3 लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस 3/4 माइनस 3/6। हाँ, तो ये मैच हो रहा है क्या? यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स they are not intersecting also. They are not coincident, they are not intersecting, they are not perpendicular, so they are skew lines. ठीक है, they are skew lines. समझ में आया ना? क्योंकि लैम्बडा कोई इक्वेशन में नहीं पुट हो रहा है ना, पुट मेरे, करेक्ट, हाँ हाँ। फाइन। नाउ 8th वाला क्वेश्चन, यस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? इट इज y is equal to 0, z is equal to 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x यस। एक्सिस इज y is equal to 0, z is equal to 0, ठीक है, जेड। ठीक है। हम्म। द एंगल बिटवीन द लाइंस, दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? और वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला, ओके। यस। यू कैन टेक दिस स्मॉल क्वेश्चन एज अ 5 मिनट होमवर्क, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम वोंट गेट वुड 10th डिटेल इट। नंबर का। हाँ, 10th वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर न्यूमरेटर में बस x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 के फॉर्म में लाना है, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे पूरे पूरे इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड करो, है कि नहीं, करेक्ट। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x प्लस 1/3 आएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे 2y माइनस 2/3 आएगा ना। फिर पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है तुमको? 3 से डिवाइड करना है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। तब जाके वो x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन समथिंग 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 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। नाउ वी यस। कम टू द क्वेश्चंस ऑफ द प्लेन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 14 यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ k इज, हेलो मानस, ये यस। वाला क्वेश्चन कैसे यस। करते हैं? यस। r डॉट n इज इक्वल टू p होता है, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस z, ये r डॉट n के फॉर्म में है क्या? नहीं है। x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू सम, क्या दिया है मेरे पास में? k दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर मुझे r डॉट n के फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज r डॉट n इज इक्वल टू p, where n is the unit normal of the plane, the normal which is always normal to the plane, right, and p is the distance of the plane from the origin, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग xi प्लस yj प्लस zk डॉट, ठीक है। अब n मुझे नहीं पता, राइट। So what I will do is I will multiply this, divide this whole equation by root of what? 2 square plus 3 square plus 1 square, करेक्ट है कि नहीं? यस। हाँ। करेक्ट। तो फिर वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा ना मेरे पास में, करेक्ट। हाँ। सो व्हाट इज दैट थिंग? 2 2i plus 3j minus k whole upon what is this thing? 4 plus 9 is 13, 13 plus 1 is under root 13 and is 14। equal to k by अंडर रूट 14, राइट। इस फॉर्म में ला लिया, गिवन ये इस फॉर्म में आ गया ना, ये अभी इस फॉर्म में आ चुका है, राइट। सो k by अंडर 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 14, सो k इज इक्वल टू 14, ठीक है, फाइन। k इज इक्वल टू 14। okay. The angle between the planes, this and this, again don't get confused here, मानस। यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है, r डॉट this इज इक्वल टू प्लस 4 दिया हुआ है, तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे? r dot what is the vector they have given? I minus 2j plus 3k, I minus 2j plus 3k is equal to minus 4 दिया है। तो ये p, ये जो चीज होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। So what you do is you multiply both the sides by -1, right? So r dot minus I plus 2j minus 3k is equal to 4, है कि नहीं? ऐसा कर सकते हो ना तुम, ठीक है। सिमिलरली तुमको दूसरे वेक्टर के लिए भी वैसे करना है।
एंड देन यू हैव टू अप्लाई द एंगल वाला फॉर्मूला फॉर द प्लेन्स। तो एंगल कैसे दिया हुआ है हमने प्लेन का? प्लेन का एंगल का फॉर्मूला क्या दिया है उन्होंने? प्लेन का एंगल का फॉर्मूला क्या दिया है उन्होंने मानस? दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? cos theta is equal to this nothing n1 dot n2 by n1 ये वाला डोंट फॉरगेट ओके ये यस ठीक है डोंट फॉरगेट acute angle between the planes is given by cos theta, the acute angle between the lines is given by sin theta, so ये डिफरेंस है ओके मतलब acute angle between line and plane का ये फॉर्मूला है एंड लाइन दो प्लेन्स के बीच में ये फॉर्मूला है n1 n2 upon n1 plus n1 dot n2 ठीक है n1 dot n2 upon मॉडुलस ऑफ n1 n2 ठीक है सीधा अप्लाई करना है फाइंड आउट करना है आंसर ठीक है now if the planes this and this are parallel then the values of lambda planes parallel कब होंगे जब उनका नॉर्मल वेक्टर सेम होगा करेक्ट जब उनका नॉर्मल वेक्टर सेम होगा तब वो प्लेन सेम होंगे राइट है कि नहीं यस तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा सिंपल 2i minus lambda j plus k 2i minus I'm just मतलब erasing वही this इक्वेशन ना लाइन इक्वेशन लिखनी है वहाँ पे हाँ 2i a minus plus lambda lambda j plus k नहीं वो प्लेन्स के बारे में पूछ रहे हैं ना वो दोनों दोनों नॉर्मल सीक्वल होने चाहिए ना मेरे पास में 4i minus j plus mu k and 4i minus mu plus क्या है यहाँ पे mu k ठीक है अब यहाँ पे अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है तो पहले मैं इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करता हूँ इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे सो हियर आई गेट 4 plus lambda square plus 1 ठीक है हियर आई गेट 16 plus mu square plus 16 करेक्ट है कि यस हाँ 4 plus नहीं 4 plus 16 plus 1 plus mu square 16 plus 1 plus mu square ये j है दिस इज j ओनली ठीक है 16 plus 1 plus mu square ठीक है सो हियर आई गेट अब मेरा 2 by under root of what 2 by under root of 5 plus lambda square is equal to 4 by under root of क्या है 17 plus mu square ये एक इक्वेशन आया ठीक है माइनस 1 by under root of 4 plus lambda square is equal to minus 1 by under root of 16 plus mu square मतलब 17 plus mu square राइट ऐसा इक्वेशन आएगा और मेरा 1 by under root of 5 plus lambda square is equal to 4 by under root of 17 plus 17 plus mu square ऐसे ही आएगा ना then only we can say correct यस तो अब कैसे करेंगे इसको यहाँ पे we'll have to do a trick here ठीक है we'll have to do a trick here यहाँ पे क्या दिया है 4i minus j plus mu k 2i minus lambda plus k ठीक है सो अगर सपोज ये मेरा 2 अगर ये मैंने सॉल्व कर दिया ठीक है सो 2 by 5 plus lambda square is equal to 17 plus mu square ठीक है so I have to just solve any of the two equations I will get the third one तीसरे वाले की जरूरत ही नहीं है मेरे पास में ठीक है तीसरे वाले की जरूरत नहीं है मेरे पास ठीक है I have to just solve these two equations I will get the answer ठीक है ओके यस हो जाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं
ओके, आई एम जस्ट बिट डाउटफुल ये होगा कि नहीं होगा. माइनस लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू हाफ रह सकते हैं ना. इफ लैम्डा इज माई हाफ, ओके, lambda is equal to half and mu is equal to 2. This is the answer. Lambda is equal to half and mu is equal to 2. क्योंकि देखो मानस यहाँ पे हेलो हुआ है यस माइनस लैम्डा जे प्लस के, ये एक है, ठीक है, एंड 4i माइनस जे प्लस म्यू के, ठीक है, यही है ना. हाँ इन दोनों को इक्वेट करना है ना हाँ अपने को, ठीक है. सो अगर सपोज मेरा लैम्डा इज इक्वल टू हाफ लिया, सो इट विल बी 2i माइनस माइनस 4j, सॉरी माइनस j बाई 2 प्लस के. ऐसा आ सकता है मेरा, ठीक है कि नहीं, हाँ आ सकते आ सकता है ना मेरा, ठीक है. तो उस केस में मैं अगर सपोज क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये वाला वेक्टर क्या रहेगा फिर, 4i माइनस जे प्लस 2k होल इंटू हाफ, ठीक है कि नहीं, एंड दिस इज यस आर हाँ डॉट दिस थिंग. सो दिस एंड दिस अब लग रहा है ना सेम, ये है कि नहीं. so your mu will be equal to 2 and your lambda will be equal to what, ठीक है, समझ गया. यस ओके ओके, rejoin the meeting, rejoin the meeting. The recording is started, recording has started. Okay, now the two vectors j plus k, 3i minus j plus 4k represent the two sides AB and AC, okay, of the triangle. The length of the median through A is, okay, Manas, see here, I am taking A at the origin, okay, this is, let us say B, let us say this is C, ठीक है. They have given me the vectors here, they have given me the vector j plus k and 3i minus j plus 4k. So they have given this vector, right. ये मुझे अगर a दिया है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा j plus k हो जाएगा, राइट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइन. और ये मेरा कौन सा हो जाएगा फिर, 3i minus j plus 4k, 3i minus j plus 4k, है कि नहीं, ये ऐसा हो गया मेरा. ओके, अगर सपोज मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो क्या रहेगा, इन दोनों का सम रहेगा, राइट, सम डिवाइडेड बाय 2, राइट, मतलब 3/2i, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, प्लस 5k/2, ठीक है, ऐसे रहेगा ना, कुछ और रहेगा, करेक्ट, फाइन. तो अगर ऐसा ही तो इसका क्या मतलब निकलता है फिर, मुझे अगर सपोज उसका लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है, सिंपल ना, 9/4 प्लस 25/4, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ 34/4, मतलब अंडर रूट ऑफ 34/2, ठीक है, डन. यस यस ऐसा ही है ना, 34/2 ए इसका आंसर, ठीक है. 13th वाला, 13th वाला, P and Q with the position vectors of P and Q respectively with respect to origin O, where mod P is equal to P and mod Q is equal to Q. The points R and S divide PQ internally and externally in the ratio 2:3 respectively if OR and OS are perpendicular then. Okay. So there is a line segment. Let us say this is O. Okay, this is O. यहाँ पे मेरा P है, ठीक है, यहाँ पे मेरा Q है, ठीक है. एक मेरे पास एक इंटरनल पॉइंट R है, मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट R है, ठीक है, समझ में आए. नाउ दिस इज P, ठीक है, दिस इज Q, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज Q, करेक्ट.
नाउ yes, अब मुझे 2:3 में आर डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है, तो मुझे आर के हम्म, डायमेंशन मिल सकते हैं ना, दिस इज ओ। आर के आर के मुझे पोजीशन वेक्टर मिल सकता है, राइट, आर का मुझे पोजीशन वेक्टर मिल सकता है विच विल बी व्हाट 3p प्लस 2 2q बाय 5, करेक्ट, फॉर्मूला था ना, yes, करेक्ट। और हाँ, मुझे एस का yes, पोजीशन, और अगर सपोज मुझे एस का चाहिए, एस एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो मेरे पास में क्या रहेगा, माइनस में होता है ना एक्सटर्नल का, 3p -2q -2q बाय 1, अपॉन करेक्ट, -1 यस, है कि नहीं। यस, अब बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब दिस ओपी, तो इनका ये डॉट प्रोडक्ट 0। और ओएस जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वो मतलब कौन सा ओ एस, ओ आर एंड ओ एस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ओ आर एंड ओ एस आर परपेंडिकुलर। तो ओ आर, तो मेरे पास में ये है, इन दोनों का मैं सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालू लूंगा और इक्वेट करूंगा 0 से, तो 3p प्लस 2q डॉट 3p -2q इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 9p² प्लस -4q² इज इक्वल टू सिंपली 0 मिलेगा, ठीक है, यस, फाइन। या 12th वाला, if alpha beta gamma are distinct real numbers, the points with position vectors alpha I plus beta plus gamma, this क्या है, कोलिनियर है, क्या है, क्या है, क्या है, आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी, ओके, यू हैव टू टेल मी। 12th वाला, अब तुमको कोलिनियर है ये अगर पता करना है, तो तुम क्या करोगे, उसको डिटर्मिनेंट में डालोगे, देखोगे कि वो 0 होता है क्या, इक्विलैटरल है हाँ, पता करोगे, तुम डिस्टेंस चेक करोगे इक्विलैटरल है क्या, करेक्ट, फाइन। अब यस, राइट एंगल है, ये कैसे चेक करोगे, दो पोजीशन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे कोई भी, अगर 0, 0 निकलता है तो वो राइट एंगल है, राइट, समझ। यस, हाँ, 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 11th वाला प्रॉब्लम, इफ a is equal to 3 and k is in this range, then इसका जो मॉड का जो इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, मॉड ऑफ k क्या रहेगा मेरा, 0 to 6, ठीक है, मॉड के पूछ रहे हैं वो, ठीक है, मॉड के मतलब, हेलो, समझा, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, 0 to 6 ही रहेगा, -3 to 6 नहीं रहेगा, हाँ, बराबर, ठीक है। नहीं, बराबर, नाउ 10th वाला क्वेश्चन, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एल प्लस एम जे प्लस एन के इज डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, ठीक है, द आंसर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होता है, सिंपल है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज एक्चुअली इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये 1 1, माइनस कॉस स्क्वायर यस, अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन हाँ, स्क्वायर, हाँ, हाँ, मतलब 3 माइनस 1 इज यस, इक्वल टू 2, आंसर इज बी 2, ओरल है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। The line joining this point and this point is parallel to the line whose direction cosine ratios are this. The values of A, B, C are. क्या करोगे अब इसमें? वही कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन यूज करना पड़ेगा ना इधर, ओके, रेशियोज दिए हुए हैं ना, तो हाँ, नहीं, रेशियो से मतलब कैसे निकलेगा, हाँ, कैसे निकलेगा? इसलिए प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, वी गेट स्टक समवेयर, राइट। हाँ, ये 6th वाला प्रॉब्लम काफी सिंपल है, ठीक है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, cos square gamma is equal to 1 minus 1 by 2 minus
1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो देख लेना। वी विल कम बैक टू दैट प्रॉब्लम। लेट अस सी की और कोई डिफिकल्टी आती है कि हमको। वॉल्यूम टू टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। वॉल्यूम टू टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें डाल के जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। Yes. Now first we'll solve the fourth wala problem where we had stopped, okay. Fourth wala problem is a is equal to 3, b is equal to 5, c is equal to 7, then and a plus b plus c is equal to 0, the angle between a and b, okay. Angle between a and b पूछा है हमें। Now here a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0 ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट। हाँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ए डॉट बी के मुझे बीच में एंगल निकालना है, करेक्ट है कि नहीं। सो दैट इक्वल टू मॉड ए डॉट मॉड बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए माइनस सी, करेक्ट है कि नहीं, ऐसा ही है इस इक्वेशन से। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट माइनस ए माइनस सी, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। और क्या दिया उन्होंने इक्वेशन, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास में माइनस ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट सी ऐसा है मेरे पास में, ठीक है, करेक्ट। दिस इज माइनस मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया उन्होंने, और क्या लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी किया हाँ और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया, अगर फिर स्क्वायर किया तो फिर वो एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, a प्लस बी स्क्वायर, मतलब फिर वो कैन आई डू वन थिंग हियर, ए डॉट ये कर सकता हूँ मैं, विल इट बी इक्वल टू 0, ये तो 0 ही रहेगा ना यहाँ पे। हाँ, तो मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ठीक है, फाइन, प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं, यस करेक्ट। अब यहाँ पे मैं फिर से ए डॉट सी, ठीक है, यहाँ पे ए डॉट सी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, okay. This fourth wala problem is again noted. Let us not waste much time there. Okay. We were there at this 8th wala problem. Okay. A line joining the points -2, 1, -8, and ABC is parallel. Okay. To the line whose direction ratios are 6, 2, and 3. Hello, Manas. यस Okay. 8th wala problem -2, 1, -8. -2, 1, -8. Okay. And then A, B, and C. Okay. So here I get I, J, K, okay, and I'm joining this line. So let this line be A
a minus 2, a plus 2, ठीक है, b minus 1 and c plus 8, ठीक है, right? This is the line joining these two, ये वेक्टर है, ठीक है, फाइन. Yes. देन अब मेरे पास में इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में 0 रहेगा, 6 to 3 के साथ में, हाँ. 6 to 3 के साथ में 0 रहेगा इसका, 6 to 3 के साथ में 0 है, करेक्ट है कि नहीं? Yes. इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ में 0 है ना मेरा, करेक्ट. सो आई इनटू b minus 1 into 3 minus 2 into c plus 8, ये इंडिविजुअली मेरे पास में क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट है कि नहीं? सो आई विल गेट 3 इक्वेशंस ऑफ ABC, ये सारे 0 रहेंगे, j इंटू क्या 6 इंटू c plus 8 minus 3 इंटू a plus 2, this equal to 0, ठीक है, एंड k इंटू वॉट 2 इंटू a plus 2, ठीक है, माइनस 6 इंटू b minus 1 is equal to 0, ये सारे 0 रहेंगे मेरे पास में, जब ये सारे 0 है, so I will get what 3 equations in ABC and I will be able to solve it, ठीक है, right? Yes. Yes. Now मुझे तुमको 2 इसके सॉल्यूशंस देना है, I will give you the solution, okay, give me some time, I'm stopping the recording now. So there were some problems which we encountered while solving this problem number 6. Is x minus 2 by 1, y minus 3 by 1, and z minus 4 by minus k. These are coplanar lines. So for what value of k? Okay. So to solve this problem, we first draw the matrix. Okay. First draw the matrix, and there we basically write what are the vectors. So there are 2 vectors here. One is b vector of first line and the b vector of the second line. B vector means that vector through which, or that vectors which are parallel to these lines. So and so we need to find a determinant such that a dot b cross c has to be 0, and that a vector has to be the line joining the lines, the points through which these lines are passing, correct? So if line 1 is passing through 2, 3 and 4, and line 2 is passing through 1, 4 and 5, so the a dot b cross c form of the determinant will have a as line joining the a vector of line 1 and the a vector of line 2, okay? So if we take that into account, we see that 2, 3, 4 and 1, 4 minus 5, 2, 3, 4 and 1, 4 minus 1, 4, 5. So the line joining this vector will be 1, minus 1 and minus 1, having as the cosine or the direction ratios, correct? So we write it at the top, okay? And then this will be perpendicular to b cross c, and b cross c is the vectors b belongs to the lines 1, that is 1, 1 and minus k, and c belongs to the line 2, that is k2 and 1. So 1, 1 and minus 1, 1 and minus k, okay? And the other one is k2 and 1, k2 and 1. So if we take this determinant value, this we have to equate it to 0. We get 1 into 1 plus 2k plus minus 1 into minus a square plus 1, a square minus 1, okay? Minus 1 into 2 minus k is equal to 0, okay? Correct?
So if we solve this, we get 1 plus 2k minus plus a square plus 1 minus 2 and minus 2, and here we'll get plus k is equal to 0. Right? So this will give us a square plus 3k is equal to 0. So we get two values of k, that is 0 and minus 3. Okay. Now we had to solve two more problems from the vectors chapter which were pending. We go back to that chapter and see what are those two problems. So one was problem number 4, right? And problem number 3. So first we start with problem number 4 here. Okay. Mod A is 3, mod B is 5, mod C is 7, and A plus B plus C is equal to 0. And we need to find the angle between A and B. Okay. So how do we do it? We have A plus B plus C as a 0 vector. Okay. So we don't know what is the relation between AB, AC, and BC, correct? So what do? We find a dot product of this term with every other vector. This will obviously be 0 only because this is a 0 vector, right? So we will get mod of A whole square plus A dot B plus A dot C is equal to 0. Then we'll get, if you multiply this term with B, we get B square plus B dot C plus B dot A is equal to 0. Okay. And if you multiply this whole term again with C or find a dot product, we are not multiplying, we are finding the dot product. So we'll get C square plus C dot B plus C dot A is equal to 0. Okay. Now here, what we'll do is, we'll first try to find B dot C in terms of C dot A and C square. So C dot B is what? C dot B is equal to minus C square minus C dot A, correct? Then we have another term here. We have A dot C. Now, if we substitute this particular thing in this equation, okay, so what do we get here? B square plus or minus C square minus C dot A plus B dot A is equal to 0. Okay. Now that means C dot A is equal to what? B square minus C square plus B dot A is equal to C dot A. Now we substitute this particular term in the first equation here. Okay. So we substitute the value of C dot A here, which is equal to A square plus A dot B plus B square minus C square, okay, plus B dot A is equal to 0. Correct? Now we get 2A dot B is equal to C square plus C square minus B square minus A square. C square minus B square minus A square. Okay. So we get 2A dot B is equal to C square minus B square minus A square. Let me verify that thing here.
c square minus b square c square minus c square minus b square. Okay, so we know what are the values here. C is 7, b is 5, and mod a is 3. So we get 2a dot b is equal to 7 square minus b square minus 5 square. Correct? So 2a dot b is equal to 49 minus 9 minus 25. So, and this is not, I've written it incorrectly. I have to write 2ab cos theta. Okay. So 2 into mod a mod b is 3 into 5 into cos theta is equal to 25. Correct? So cos theta is what we get? 5 3s are 15, 15 2s are 25 by 30. Yes, I'm not getting the correct answer, but this is the way to solve that question. There are no duplicate ways to solve it. Okay, maybe I'm doing some calculation mistake here and there. So this is 15 and not 25. Correct? So cos theta is equal to half, and theta will be equal to pi by 3. Okay. The third one question. Okay. The sum of two unit vectors is itself a unit vector, then the magnitude of the difference is. Sum of two unit vectors is itself a unit vector. So if I take a plus b as the two unit vectors, this mod is 1. Okay. So if I take a plus b dot a plus b, then it will be again mod of a plus b whole square. Correct? Yes or no? And this will be equal to 1. So this is mod a whole square plus mod b whole square plus 2 times a dot b is equal to 1. And I have to find out the magnitude of a minus b here. Okay. Now what is the magnitude of, how will I find it out? I'll again take a minus b dot a minus b. Okay. And I will take the square root of this thing, right? Find the magnitude. Yes or no? Now a dot b, sorry, a minus b dot a minus b will give me what? Mod of a square plus, sorry, mod of b whole square minus 2a dot b. And this 2a dot b is nothing but what? 2a dot b is nothing but 1 minus mod a whole square minus mod b whole square, which is equal to, then since these two are again unit vectors, so this will be minus 1. 2a dot b will be equal to minus 1, since this is also 1 and this is also 1. Correct? So a substitute getting here. So this is 1, again this is 1, this is minus of minus 1. Correct? And this will give me 2 plus 1 is equal to 3, and इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो √3 रहेगा. ठीक है? So mod of a minus b will be equal to √3. Mod of a minus b will be equal to √3 because हमको इसका स्क्वायर रूट लेना था. ठीक है? Fine. That's all.